we have been thinking about doing this meeting as well as your idea of question hour session. And finally, we meet here. Yes, thank you so much for inviting me, Shashi. It's an honor, and in fact, I have been also thinking to bring up answers to questions, and what a coincidence! Definitely, it's Right. going to be fun. So, for the benefit of viewers of your channel, my channel, both, Shubha is a great singer. She recently performed at the consulate for the Gandhi Jayanti, and it was very well received. I myself was floored when I heard that alap in the beginning. I mean, Khamaj, you can hear many times, but then everybody has their own flavor to it. So I was very happy. And every time you sing it, it comes out different. Right. Yeah. So we have been talking about how to answer the questions from curious fans as best as possible. So I thought I'll be the person to represent them. Somehow I became the chosen one. Definitely, yeah. And thank you for thinking of bringing, consolidating all these questions and bringing this episode for all of us, I would say. And I'm sure this is going to help everybody that's watching. Yeah. मेरे भी काफी क्वेश्चंस हैं, बट पहले यहाँ से शुरू करते हैं. हाँ, बिल्कुल. तो एक कॉमन सवाल रहता है रियाज रिलेटेड कि सुबह आवाज बहुत हिलती है, कंपन कांपना जो होता है आवाज का, तो उसके लिए क्या करें? सुबह ओके, पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं बता रही हूँ. व्हेन आई स्टार्टेड इन द वेरी बिगिनिंग, लाइक व्हेन आई वाज 5 year old, व्हेन आई स्टार्टेड लर्निंग म्यूजिक, और तब जाके रियाज क्या होता है वो तब पता चला. तो तभी से इनफैक्ट मैंने ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया कि अचानक से आप कुछ एक दिन उठ के करेंगे तो आपको दिक्कत होगी, बिकॉज योर बॉडी इज नॉट यूज्ड टू इट. और वही चीज़ एक ही टाइम पे हर दिन सुबह या शाम को या जो भी है आपको, सिंस योर क्वेश्चन है सुबह का टाइम है, आवाज़ हिलती है, स्टेबल नहीं है वॉइस, तो एक ही टाइम पे अगर आप अपने बॉडी को एक किसी चीज़ के लिए हैबिचुएट कर दे, दैट्स गोइंग टू हेल्प अ लॉट डेफिनेटली. एंड दैट हेल्प्ड मी पर्सनली. मतलब मैंने खुद ही ऑब्जर्व किया 5-6 दिन के बाद इट वॉज काइंड ऑफ ईजी, और वो सुबह एक डिहाइड्रेटेड सी फील होती है, लगता है कि आवाज़ खुल नहीं रही है एंड इट्स नॉट वार्म्ड अप, वो फील ही चली जाती है आफ्टर 5-6 days. और एंड ऑफ कोर्स रियाज के तरीके तो हैं ही जो हम आगे डिस्कस करने वाले हैं, बट टू आंसर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन आई वुड से कीप वन पर्टिकुलर टाइम every single day and be consistent on that time, around that time I would say. Like अगर आप सुबह if you're an early riser 6 बजे उठ रहे हैं, 5 बजे उठ रहे हैं, or even earlier, depending on your schedule and your interest, keep that one particular time. I know some days are going to be hard, but just keep that consistency, और आप खुद ही देखेंगे कि आपको वो एक ease आने लगा, और जैसे ही आप वो फील करेंगे तो वो और भी आपको मोटिवेट करेगा टू कीप दैट कंसिस्टेंसी गोइंग. ओके, सो रेगुलरिटी एंड चूजिंग अ regime, not just what you do but also the time, at what time you do is important. Yes, definitely. Yeah. Acha, before I forget, I would like to give shout out to Shama. Yes. Shama is the one who connected both of us. So Shama, if you are watching, Shama, shout out to you, Shama. Yes, thank you so much for connecting us. हाँ, हम लोग, in fact, Shama and I also got connected on Instagram first. Oh, okay. हाँ, तो Instagram has been very the most important connecting source for me. I got connected to many of my students as well as my friends, very good friends. Shama has been one of them. फिर तो हम लोग मिले. She came over and she performed here in the Bay Area, so we met and we are still in touch. So yeah, we are great friends. Yeah, amazing. तो दूसरे सवाल पे बढ़ते हैं.
हेड वॉइस, ये क्वेश्चन दोनों तरफ आ सकता है, मेल वॉइस और फीमेल वॉइस को। तो हेड वॉइस में कैसे ट्रांजिट करना है? ओके, हेड वॉइस में कैसे ट्रांजिट करना है, तो ये जैसे मैंने मेरे जो एक मैं थोड़ा एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि ये आजकल फिल्मी गानों में हाई पिच का जो सुरूर चला है कि सबको हाई पिच में गाना है, तो वो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस में मुझे ऐसा लगता है कि सबकी एक लिमिट है। वो अपने बॉडी को सुन के यू रियलाइज व्हाट यू कैन डू। You can always attempt to do maybe 2 notes higher by the practice, but if you want to learn the head voice, how to do it? That's the question. राइट। नहीं, जैसा आपने कहा कि हेड वॉइस आजकल सबको हाई पिच पे गाना है, एंड तभी जाके हम सोचने लगते हैं कि हेड वॉइस से कैसे गाए, व्हाट इज़ इवन हेड वॉइस, राइट? तो मेरे कुछ ट्यूटोरियल्स हैं, मेरा जो इनफैक्ट द फर्स्ट एवर एपिसोड दैट आई एवर रिकॉर्डेड फॉर माय ट्यूटोरियल्स, दैट इटसेल्फ हैड कवर्ड दिस हेड वॉइस, स्टमक वॉइस, चेस्ट वॉइस, और तीनों में कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं और अपनी आवाज़ में वो पॉइंट ढूंढ निकालना जिस पॉइंट के बाद हेड वॉइस स्टार्ट हो सकता है, इफ़ यू आर पेइंग अटेंशन। तो वो एक की क्राइटेरिया है। पहली बात तो अपने आप को, अपनी आवाज़ को अच्छे से जानना बहुत ज़रूरी है, कि मेरे नेचुरल वॉइस में जब मैं गा रही हूँ पर्टिकुलर, मेरा स्केल पहले तो मेरा पिच फिक्स्ड रहना चाहिए। आई शुडंट बी कीपिंग द पिच वन डे एट ए शार्प, दूसरे दिन सी, ऐसे चेंज नहीं होना चाहिए। जो रियाज का पिच है वो सेम रहे, तभी जाके आप खुद को पहचान सकते हैं, खुद की आवाज़ को अच्छे से और पहचान सकते हैं। एंड देन यू कैन फिगर आउट कि मेरे धा, इस पर्टिकुलर पिच पे मेरे धा या नी के बाद आवाज़, मतलब जो मेरा नेचुरल वॉइस है, विच आई कंसिडर इज़ कॉम्बिनेशन ऑफ चेस्ट एंड स्टमक वॉइस, तो उसके बाद थोड़ा अनस्टेबल हो जाता है, या उसके बाद थकान महसूस होती है इफ़ आई कंटिन्यू विथ माई स्टमक एंड चेस्ट वॉइस। तो उसके बाद फिर वो हेड वॉइस में ट्रांजिशन अपने आप होता है। पर किसी लोगों में, एंड इंक्लूडिंग माई सेल्फ, किसी लोगों में कोशिश करनी पड़ती है। और लाइक ग्रोइंग अप आई हैड लॉट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशंस ओवर माई वॉइस, और जिसकी वजह से मैं आज बोल पा रही हूँ ये सारी चीज़ें, बिकॉज मैंने खुद ये सारी चीज़ें एक्सपीरियंस की है। तो एक पॉइंट ऐसा भी आता है, और मेरे साथ ऐसा हुआ है, इनफैक्ट मैंने और भी मेरे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो भी हैं, उनके साथ भी मैं देख रही हूँ कि दे आर गोइंग थ्रू सिमिलर फेजेस वेयर दे फिगर आउट, ओके मेरी आवाज़ में धा, नी और इवन सा के बाद आवाज़ नहीं जाती है, मतलब खुली जो आवाज़ है, खुल के जो आप गाते हैं स्टमक वॉइस, उसके बाद नहीं जा रही हैं, देन व्हाट डू आई डू? सो what I did growing up, जब मुझे तकलीफ़ होनी शुरू हुई अराउंड 14 year old का जो मेरा एज था, तो उस वक्त मैंने क्या किया, मैंने एक्चुअली आई लिटरली स्टॉप्ड यूजिंग माई स्टमक वॉइस completely, and I started humming and singing. Like आप कोई भी गाना गुनगुनाएंगे और आप हम करना स्टार्ट करेंगे, और उसी हम को आपको थोड़ा और वॉल्यूमिनस करना है। जैसे जैसे आप उसको वॉल्यूम बढ़ाने की कोशिश करेंगे, इट्स नॉट अबाउट जस्ट हमिंग फ्रॉम हियर, बट जैसे जैसे आप वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो ये पूरा आपका मसल्स जो है, चेस्ट मसल्स भी एक्टिव होना शुरू हो जाएगा। तो that they will all join together to bring up that volume of your humming voice. And then वो धीरे धीरे क्या होगा कि body will recognize that this is something I need to start vibrating in the head, like because all these voices, right, chest voice, stomach voice, head voice, these are nothing but voices coming from your voice box, not nowhere but voice box. But वो जो vibrations हो रहे हैं या फिर आपको जो feel हो रहा है कि आप stomach से गा रहे हैं, तो stomach का core muscle is active. चेस्ट से गा रहे हैं मतलब चेस्ट में वाइब्रेशन फील कर रहे हैं, हेड से गा रहे हैं, हेड वॉइस से गा रहे हैं मतलब हेड में वाइब्रेशंस फील कर रहे हैं. तो बहुत हाई नोट्स अगर होंगे तो उसमें हेड वॉइस अपने आप बॉडी स्विच कर लेगा, प्रोवाइडेड यू गिव अ चांस फॉर द बॉडी टू
recognize that this is the point where the body can actually automatically switch to head voice. और वो when I say giving a chance, which actually means that you pay attention, where is that transition point happening, where is that point where your stomach voice needs to take a back seat and let the head voice take over. तो हेड वॉइस जो मेरे हिसाब से मैंने नोटिस किया है, मैंने देखा है, इज नथिंग बट अ लिटिल मोर वॉल्यूमिनस हमिंग वॉइस, हम। और भी आप मतलब उसको इतना आप कंडीशन करेंगे ओवर द टाइम, आप रियाज भी अगर उसको उसके लिए आप रियाज करें तो आपको एक टाइम पे ऐसा फील होगा कि इट्स बेसिकली ऑल द सेम, लाइक मेरा क्या है, चेस्ट वॉइस क्या है, स्टमक वॉइस क्या है, हेड वॉइस क्या है, इट ऑल हैज बिकम द सेम। तो एकदम एक जैसा प्रतीत होने लगेगा, बिकॉज देयर इज यू वुडंट बी एबल टू लाइक पिन पॉइंट कि अच्छा मैंने यहाँ पे स्विच किया है, तो वो स्विच पॉइंट बहुत ईजी हो जाएगा आगे चल के। लाइक डेफिनेटली इट्स नॉट अ ओवरनाइट practice that you can, it actually took me I think more than 4-5 years of conscious effort, जिसमें कि मैंने actually बहुत मतलब अपनी तरफ से बहुत कोशिशें की, and it's also tough for the mind to even switch off your real natural stomach voice and start humming start when you start singing you're actually humming, nothing but just humming, but then उसी में आप रियाज करते जाएंगे, बढ़ाएंगे, तो धीरे धीरे आपका हेड वॉइस improve होगा. And another tip that I'm recently observing with some of my students is if you want to develop your head voice, go for a higher pitch and then start the रियाज. क्योंकि बॉडी के जो मसल्स हैं, अपने जो वोकल कॉर्ड मसल्स हैं, they are so well trained by birth, I would say, that they know whenever the pitch is low, they know it is chest muscles that need to be activated, chest voice, right? When it is like a high power that you need, it's the core power, the muscle, the stomach muscles that come into power. और जब भी वो पिच थोड़ा हाई हो जाता है तो हम अपने आप से आवाज़ पतली हो जाती है या थोड़ी हल्की हो जाती है, एंड ऑल दैट. सो इट इज़ वेरी नेचुरल प्रोसेस. सो आई वुड से जैसे ही आप थोड़ा हाई स्केल में रियाज करना शुरू करेंगे, make sure that high scale should be so high that your stomach voice cannot even reach there. For example, जैसे मेरा नेचुरल स्केल रहा है, बचपन से मेरा नेचुरल स्केल रहा है जी या जी शार्प. उसके बाद जब वॉइस ट्रांसफॉर्मेशंस हुए मेरे, एंड I've seen a lot, I've tried a lot, experimented a lot with my voice. Eventually when I figured out that okay, my head voice is getting triggered only if I start my practice from A sharp. अगर मैं जी शार्प में अभी भी गाऊं तो मेरा हेड वॉइस नहीं ट्रिगर होगा, बिकॉज माई बॉडी नोज दैट इट्स नॉट द फ्रीक्वेंसी दैट योर अपर वोकल मसल्स आर नीडेड. तो हेड वॉइस मतलब क्या, अपर वोकल मसल्स से जो आप गाते हैं वो और भी कंडीशन हो जाए तो आप बोल सकते हैं कि उसके वाइब्रेशंस आपको हेड में सुनाई देते हैं. तो दैट इज़ योर हेड वॉइस. और वो तभी ट्रिगर होते हैं जब आप थोड़ा ऊंचे स्केल में आप गाएंगे रेगुलर से. तो जैसे आप कोई भी, लाइक फॉर एग्जांपल इफ यू टेक एनी लता मंगेशकर सॉन्ग और फॉर दैट मैटर यू टेक रफ़ी सॉन्ग, तो उनके स्केल्स ऊपर ही होते हैं. And if you want to develop your head voice, I would say start humming with them. Don't start singing with them because that might damage your voice. All of a sudden you're trying something out, something new. Try humming with them, and slowly you'll have to just observe how your body is taking the humming on the higher pitch. And धीरे धीरे वो बस ट्रेन होता जाएगा. ब्रेन ट्रेन ही होता है. और ये सारी जो चीज़ें हम करते हैं, रियाज या प्रैक्टिस या जो भी है, इट इज़ आवर ब्रेन विच इज़ गेटिंग ट्रेन्ड. और एक बार ब्रेन को पता चल जाए कि दिस इज़ द पॉइंट
my vocal cords need to be switched to some other set of muscles, it'll do automatically. But अगर आप continuously आप lower pitch पे या अपने natural pitch पे गाते रहेंगे, and then you would be wondering how will the head voice come up. It is going to take time. It probably going to take longer time. Yeah. तो अगर आपको experience करना है what is head voice, do what I just mentioned, and you'll notice what is head voice, and then take it slow, take it easy, take it like you know, एक दिन natural voice में आप अपना रियाज कीजिए, या फिर सुबह का रियाज आप जैसा कर रहे हैं आप कीजिए, दिन भर में कभी भी कोई भी सॉन्ग उठा लीजिए and then start humming with it. And then you'll see that your humming voice, the voice that is producing the hum, is gaining that muscle power. Right. And slowly that head voice will develop. Yeah. But that is completely my experience though. लोगों के और भी opinions हो सकते हैं और भी feedbacks हो सकते हैं. But this is what I have gone through, and I am sharing my own experience. No, very correctly. And the advice about humming and not singing, because this is such a delicate box, and you need to be very careful. Exactly, yeah. And in my experience, I have seen that being high frequency, it can carry forward farther. So you don't need that much volume. You need Exactly. to tighten it, and Right. it will automatically switch. Right. So the example that I give to people who ask me this question, like, so I tell them, imagine you're running sprints, right? Yeah. So if you are walking, you need heavy-footed, quick-paced या slow-paced, जैसे भी आप चलना चाहेंगे. The moment you start running, you need to lift up your body. You need to get in the stride of agility. You need to just lighten your body so that you can pick up the pace, you can keep up the momentum and keep going. तो वो जो आपने change किया, that is your head voice. That is your lightness of the voice that we are talking about. That is not always needed. If you are taking a stroll in the park, you don't need that lightening of the body or lightening of the voice. So similarly, if you are singing a very soft number, या फिर आप बंदिश गा रहे हैं कोई, आपको हेड वॉइस की जरूरत नहीं है. You need that weight, the बंदिश that needs the weight of the voice. But जैसे ही आप कोई फिल्मी सॉन्ग लेते हैं, बॉलीवुड सॉन्ग या कोई भी सॉन्ग दैट नीड्स हायर थ्रो और हायर पिच सिंगिंग, और it actually takes you on the higher octave, and it kind of like dwells there, it doesn't come down. तो वो अपने आप से आपको पता चलेगा कि अच्छा यहाँ पे हेड वॉइस ट्रिगर होने वाला है, and just let your body do what it wants. Be patient and Yes, yeah, and take it easy, yeah, right. okay. Moving on. अच्छा, गाने में, स्पेशली अपने गाने में आकार का बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस दिया गया है. और कई लोगों का ये होता है शुरुआत में कि आकार, और इससे एक रिलेटेड क्वेश्चन, वो खुली आवाज़, दोनों शायद खुले सवाल हैं कि उसको कैसे पाया जाए. आकार मतलब लगे कि भाई हाँ ये आकार हो रहा है और अच्छा हो रहा है, मीठा हो रहा है और खुलापन भी है. तो मैंने दो सवाल मिला दिए हैं इसमें. नहीं, that's a very intelligent way of clubbing two questions. So सबसे पहले तो आकार का जो सही तरीका है वो है जो माउथ ओपनिंग होना चाहिए वो बिल्कुल कांस्टेंट होना चाहिए. तो ऐसे नहीं करना है कि आप शुरू कर रहे हैं फिर आपका ओपनिंग बंद हो रहा है. ऐसे बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए. मैंने ये नोटिस किया है, काफ़ी लोग दूसरों को देख के सीखते हैं, और अगर कोई मान लीजिए कोई ऐसे गा रहा है और उसको देख के आपने सीख लिया और आप कंटिन्यू करते गए कुछ साल, आपको लग रहा है कि वो सही है, पर एक्चुअली में वो गलत टाइप है, मतलब गलत वे ऑफ रॉन्ग वे ऑफ डूइंग द आकार. तो
जैसे ही आप माउथ ओपनिंग को कांस्टेंट रखेंगे, सो दिस इज योर, इमेजिन दिस इज अ सिलेंड्रिकल पाइप ऑफ मसल्स. तो मान लीजिए अगर ये सिलेंड्रिकल पाइप ऑफ मसल्स है और माउथ ओपनिंग इज वन ऑफ द ओपनिंग्स ऑफ द सिलेंडर, और आपने उसको कंस्ट्रिक्ट कर लिया, या आप, अच्छा ऐसे दिख रहा है ना, हाँ ओके. सो इतना अगर आपने, मतलब आई एम जस्ट एग्जैजरेटिंग, इतना तो कोई शायद नहीं करेगा, बट इतना अगर आपने कांस्टेंट कर लिया कि ठीक है ये मुझे सूट हो रहा है आकार के लिए, तो आई कीप माई माउथ ओपनिंग दिस मच. लेकिन अब गाते गाते क्या होता है कि ऐसे ऐसे होता रहता है, ऐसे ऐसे होता रहता है. तो क्या होगा कि आप जैसे जैसे माउथ के ओपनिंग को ऐसे बंद और खुला करेंगे, तो जो फ्रीक्वेंसीज प्रोड्यूस होंगी या जो भी साउंड प्रोड्यूस होगा वो कंसिस्टेंट नहीं होगा पहली बात तो, और उससे आकार को बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा, बिकॉज दैट इज़ गोइंग टू अफेक्ट योर मसल्स. ये जो है सिलेंडर, या फिर ऐसे दिखाऊं तो ये जो सिलेंडर है, तो यहाँ के मसल्स अफेक्ट होंगे जो कि वोकल कॉर्ड मसल्स है. तो डिपेंडिंग ऑन दिस ओपनिंग योर अंडरलाइंग मसल्स आर गोइंग टू गेट अफेक्टेड. तो आप ये खुद भी कोशिश कर सकते हैं. एक कोई भी आप कोई भी ले सकते हैं. मे बी कैन आई शो एन एग्जाम्पल? या अच्छा, एक्चुअली डेमोन्स्ट्रेटिव रहेगा तो इट विल बी मोर इंटरेस्टिंग, राइट? इंटरेस्टिंग एंड समझ में जल्दी आता है. हाँ, राइट. ओके. Okay, so I'll take a very easy example of this अलंकार, सारेगा रेगा मा, जो सबको आता होगा शायद. तो तो ये जो मैंने आकार किया, आप देख सकते हैं मेरा जो माउथ ओपनिंग रहा है वो बिल्कुल सेम रहा है. जो भी मैंने प्रोड्यूस किया है वो यहाँ के मसल्स से प्रोड्यूस किया है, और वो मेरे हिसाब से खुला महसूस हुआ मुझे गाते वक्त. उसको अगर मैंने थोड़ा और अलग तरीके से प्रोड्यूस किया होता, ये भी सुनने को शायद ठीक लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा, मेरे हिसाब से नहीं अच्छा लगेगा. लेकिन कुछ लोगों को डिफरेंस नहीं पता चलता है और वो ले लेते हैं, इस तरीके को अपना लेते हैं. सॉरी, वापस. अननोइंगली ले ले. अननोइंगली, हाँ, अननोइंगली आप ये तरीके को अगर आप अपना लेंगे तो क्या होगा. मैंने क्या किया सेकंड वाले डेमोन्स्ट्रेशन में, तो आई वॉज ओपनिंग फॉर तो मैं उस सिलेंड्रिकल मस्कुलर शेप जो भी है उसको अगर मैंने बंद खुला ऐसे किया है, तो उसके मसल्स भी तो अफेक्ट होते हैं क्योंकि दे आर ऑल कनेक्टेड, इट्स अ सिंगल यूनिट. तो उससे आपका आकार प्रोड्यूस भी अलग तरीके से होगा, आपके वॉइस को डैमेज हो सकता है इन द लॉन्ग रन. एंड अनदर थिंग इज़, वो सुनने में भी अच्छा नहीं लगेगा, उसका एस्थेटिक वैल्यू भी नहीं अच्छा रहेगा. And another thing is, that is wrong way of producing आकार, because you are using your mouth opening to produce something like गमक. तो आपको जो गमक है वो गले से आना चाहिए, ना कि माउथ ओपनिंग से. गला इन द सेंस जीभ के बिल्कुल बेस से जो मसल स्टार्ट होते हैं वो. तो जीभ का जो बेस है, बिल्कुल एपिग्लॉटिस का जो पोर्शन है, दैट ऑल्सो इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग गुड आकार. This is one thing. And coming to your second section of this question, कि आवाज को, आकार को खुला कैसे, खुलापन आवाज में, आवाज को कैसे खुला महसूस करे, राइट, आकार में. तो उसमें क्या होता है, आई एम ट्राइंग टू थिंक ऑफ एन एग्जाम्पल. हाँ, तो ठीक है, मान लीजिए आपने माउथ ओपनिंग सेम रखा, जैसे मैंने अभी बताया कि ठीक है माउथ ओपनिंग सेम रखना है थ्रू आउट एंड डोंट कीप ओपनिंग एंड क्लोजिंग इट. तो आपने वो सेम रखा, बट यू आर डूइंग समथिंग मोर. नाउ सी,
तो इसमें आप नोटिस करेंगे कि मैंने माउथ ओपनिंग सेम रखा है, मैंने माउथ को चेंज नहीं किया है. वॉट आई हैव चेंज्ड इज माई टंग अपर्चर. टंग का जो अपर्चर है, जो एपिग्लॉटिस का जो बेस पोर्शन है टंग का, उसमें भी आप बंद खुला कर सकते हैं. और ऐसा होता है कि गाते गाते अगर वो बंद हो जाए, काफ़ी बंद हो जाए, तो आवाज़ खुली प्रतीत नहीं होती है, आवाज़ जैसे बंद प्रतीत होती है. वर्सेस तो मैं जो गाते वक्त ये जब मैं गा रही हूँ तो मैं अंदर से आई एम मेकिंग श्योर दैट माई टंग इज Not obstruct. kind of, yeah, it's kind of at the bottom surface of the mouth. वो अगर गाते गाते ऊपर उठ गई जीभ, तो then it's going to again mimic what you are avoiding with your mouth opening. So that is one way of क्या बोलेंगे, one way of Judging. आवाज़ को खुलने के लिए आकार को और खुला कैसे सुनाए. तो दैट इज़ वन वे. अनदर वे इज़ जैसे जैसे आप हायर नोट्स की तरफ बढ़ते हैं, तो ये जो हाई सा है, एंड आई हैव सीन दिस इन मैनी पीपल, एंड वो अननोइंगली हो जाता है कि एक पॉइंट के बाद ना वो नेज़ल आवाज़ स्टार्ट हो जाती है उनकी. वो भी दैट इज़ अनदर रीज़न वाई यू आर फीलिंग कि आपकी आवाज़ खुली नहीं है. क्योंकि एक बार वो नेज़ल वॉइस आ जाए तो क्या होता है कि जो गला और माउथ का जो ओपनिंग है, दैट्स एक्चुअली लाइक अ फोर्क. तो यहाँ से भी सांस आ सकती है, मतलब ये नोज़ है और ये आपका माउथ है. हम जब गाते हैं तो वी मेक श्योर दैट द माउथ ओपनिंग इज़ वेरी ओपन, लाइक इट्स प्रिटी क्लियर, ओके. एंड ऑफ कोर्स सांस तो जानी चाहिए. बट क्या होता है कि जब आप ऊपर के नोट्स पे पहुंच जाते हैं, यू प्रॉबली आर नॉट पेइंग अटेंशन टू द बेस ऑफ द टंग मसल्स. तो जैसे जैसे आप ऊपर चढ़ते हैं तो आप उस नोट को रीच करने के लिए आप कोशिश करते हैं, तो आपका ध्यान भटक जाता है और उससे क्या होता है कि वो जीभ वाला पोर्शन वो ऊपर उठ जाता है. तो ये कंस्ट्रिक्ट हो जाता है. ये कंस्ट्रिक्ट हो गया तो आपकी हवा जो है वो काफ़ी सारी हवा नोज से आने लगती है, एंड दैट इज़ व्हेन इट स्टार्ट साउंडिंग नेज़ल. और जैसे जैसे वो हायर नोट्स, और ये बिल्कुल बिना सोचे समझे होता है. फॉर एग्जाम्पल, तो जैसे ही वो नेज़ल, आप खुद भी ट्राई कर सकते हैं, जब भी आप नेज़ल खुद से गाएंगे तो बहुत कम एफर्ट लगती है. एफर्ट बिल्कुल ना के बराबर. मैं ये भी कि जब किसी भी रियाज के दौरान जब कुछ थोड़ा सा डिफिकल्ट कुछ आता है तो बॉडी विल सर्च फॉर लीस्ट रेजिस्टेंस पाथ. एग्जैक्टली, या करेक्ट. एग्जैक्टली. तो वही ना, तो हायर नोट्स के लिए जब आप स्ट्रगल कर रहे हैं कि हायर नोट्स को पहुंचना है, तो या द लीस्ट रेजिस्टेंस पाथ इज द नोज. तो वहाँ से फिर आवाज़ निकलती है और आपको लगता है अरे बहुत मतलब सुर में गा रहे हैं, ऑल दैट. येस, बट देन इट इज़ प्रोड्यूसिंग नेज़ल वॉइस, और उससे भी आवाज़ का खुलापन दबता है. तो आपको हमेशा अपने आप से ट्यून्ड रहना चाहिए. यू हैव टू ऑलवेज स्टे फोकस्ड ऑन व्हाट यू आर साउंडिंग लाइक. आपको और ये ईयर ट्रेनिंग का बहुत बड़ा अंग है. शायद मैं एक probably very soon I'll come up with a video on this. I'm getting a lot of requests on ear training. तो ये सबसे पहले तो स्टार्ट होता है अपने आप को सुनने से. अपने आप पे ध्यान लगाइए, आप अपने आप को सुनिए कि आपका सा कैसे लग रहा है, आपका पा कैसे लग रहा है, आपका हायर नोट सा या ऊपर जब जा रहे हैं तो आपकी आवाज़ कैसे सुनाई दे रही है. इज़ इट ईयर प्लीजिंग और इज़ इट दैट यू आर नॉट लाइकिंग योर ओन वॉइस. क्यों, अगर आपको अपनी आवाज़ पसंद नहीं आ रही तो क्यों पसंद नहीं आ रही. तो यू हैव टू रियली पे अटेंशन एंड स्टे ट्यून टू योर बॉडी. और फिर जैसे जैसे आप
आप अपने अपने अटेंशन को एकाग्र करेंगे तो आपको पता चलेगा कि गड़बड़ है, और कहाँ गड़बड़ है वो भी आपको पता चलेगा, एंड देन यू स्टार्ट टू फिक्स इट, लाइक यू जस्ट हैव टू अनलर्न सर्टेन एस्पेक्ट्स. So yeah, nasal voice is something that we have to be very careful about, and as soon as you figure out you have started sounding nasal, और उस पॉइंट से किस पर्टिकुलर नोट के आगे से जाके वो नेजल साउंड हो रहा है वो भी आपको ध्यान में रखना है. और फिर उसके बाद देर आर टेक्निक्स दैट वी कैन टॉक अबाउट. इफ देयर इज अ क्वेश्चन देयर वी कैन डेफिनेटली टॉक अबाउट, बट आई होप आई आंसर्ड योर क्वेश्चन, शशि. एक्चुअली आजकल तो रिकॉर्डिंग के माध्यम इतने सारे हैं, तो दे कैन एक्चुअली, दे आर एज यू सेड फोकस्ड हैं अपने आप को सुनने में, तो पता चले. एग्जैक्टली. और अगर उस पे भी और ज्यादा, इफ यू वांट टू बी हार्ड ऑन योरसेल्फ, किसी और को सुना दो एंड लेट देम बी ऑनेस्ट एंड क्रिटिक अबाउट इट, यस, वो बोल देंगे. दैट्स ट्रू. हाँ, तो रिकॉर्डिंग अपने आप को खुद रिकॉर्ड कीजिए. मैं हमेशा बोलती हूँ कि हम व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप आई डिडंट हैव दैट फैसिलिटी. फोन्स इतने मतलब थे ही नहीं, और कैसेट हुआ करता था तो उसमें रिकॉर्डिंग तो मतलब भूल जाइए. बट मतलब वो उतनी सुविधा नहीं हुआ करती थी. लेकिन आज के ज़माने में खुद को सुनना इतनी बड़ी बात नहीं है, बस इच्छा होनी चाहिए, और आपके हाथ में फ़ोन है, आपके पास सब साधन मौजूद है, तो डेफिनेटली डू दैट, डू टेक दैट स्टेप टूवर्ड्स सेल्फ इम्प्रूवमेंट, कि आप खुद को सुनिए और ख़ुद को जज कीजिए. हाँ, किसी और को सुनाएंगे तो और भी आपको फीडबैक्स मिलेंगे, बट मेक श्योर यू आर फोकस्ड ऑन योर ओन टारगेट. कि आप अगर आपको अगर लग रहा है कि अच्छा मेरे हायर नोट सही लग रहे हैं कि नहीं, आपको पहले तो खुद सुनना चाहिए और फिर किसी और से सलाह लेनी चाहिए, जिसको आप गुरु मानते हैं, जिसको आप जिनको आप मानते हैं संगीत के मामले में. तो ज़रूर या यू कैन डू दैट. नहीं, ये ज़रूरी है. आजकल कई बार हम क्या करते हैं कि जैसे सुर साधने की बात भी अगर है तो कई बार हम अपने आप को खुद को नहीं सुनते. एग्जैक्टली. हाँ, तो इसमें एक प्रॉब्लम आती है वैसे, जब खुद को हम सुनना चालू कर देते हैं तो इतने सारे कंकड़ पत्थर सब दिखते हैं. जैसे अगर खाने की बात करें, चावल में, दाल में एक पत्थर आ गया खाते खाते तो कितना बुरा लगता है. तो जब ये दिखना चालू हो जाता है, जब आपको एक माइक्रोस्कोप मिल जाता है आपके कानों को, तो फिर बहुत दिक्कत होती है. कुछ भी रिकॉर्डिंग करने में इतना डर लगता है, अरे ये यहाँ पे ये भी ठीक नहीं है, ये भी ठीक नहीं है, वो इतना ज़्यादा बड़ा दिखने लगता है. राइट. एंड स्पेशली अगर कंडेंसर माइक्रोफोन हो तो. या जोक्स अपार्ट, यस, बट शुरुआत कहीं से तो करनी चाहिए. उसमें एक फायदा भी है कि इंक्रीमेंटल इम्प्रूवमेंट हो रहा है, इम्प्रूवमेंट दिखता है. यस. हाँ, ट्राई करना चालू कर देते हो फिर अच्छा. राइट. हाँ, तो आगे बढ़े. हाँ जी, बिल्कुल. एक थोड़ा लाइट की तरफ, कि भाई फिल्मी गाने बहुत अच्छे लगते हैं, अब उसको हम कैसे तैयार करें. तो उसके पहली स्टेप आती है कि उसका सुर कैसे पकड़ें. कोई गाना अच्छा लग रहा है, उसको हम कैसे, कई बार तो ये होता है कि सा ही पता नहीं है, हाँ, पकड़ें, पा से पकड़ें, गा से पकड़ें. करेक्ट. ये एक सवाल. तो ये बहुत ही कॉमन सवाल है, और इस पे तो आई मीन आई कैन गो ऑन एंड ऑन. और ये बिल्कुल करंट हॉट टॉपिक आई वुड से आजकल का. तो एक सबसे पहली बात तो अपना पिच हमें पता होना चाहिए कि मेरे लिए मेरा पिच कौन सा है. जैसा मैंने कहा, ए शार्प या बी या ए, जो भी है, आपको अपना पिच पहले पता होना चाहिए. फिर आप चलिए गाने के पिच को ढूंढने के लिए. मान लीजिए कोई गाना चल रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल अभी ना जाओ छोड़कर कि दिल अभी भरा नहीं. तो ये मेरे ख्याल से ये गाना डी शार्प, ओरिजिनल शायद डी शार्प पे है, डी या डी शार्प पे है. तो ये कैसे पता चलता है कि गाना कौन से पिच पे है?
तो इस पे है मेरा एक वीडियो मैंने अपलोड किया हुआ है। तो शॉर्ट में अगर मैं बताऊं तो कोई भी किसी भी गाने को अगर आपको पिच आपका गाने का पिच ढूंढना है तो पर्टिकुलर कहीं पे जाके गाना ठहरता है, कहीं पे जाके आप देखेंगे कुछ वर्ड्स रुकते हैं कहीं पे। वो मोस्ट ऑफ द टाइम्स इज़ ईदर सा और मा और पा। खैर गाने के राग पे डिपेंड करता है या गाने के चलन पे भी डिपेंड करता है काफ़ी कुछ। फॉर एग्जांपल जैसे मैं अभी एग्जांपल ही दे रही हूँ तो Background and foundation of classical helps. definitely yes, absolutely, background of classical music definitely helps। पर कुछ मैंने ऐसे देखा है कि कुछ लोग बिना सीखे भी जब गाते हैं तो वो एक्चुअली शुरुआत ही बॉलीवुड सॉन्ग से करते हैं, फिर आगे चल के उनको लगता है कि नहीं शायद मुझे और ट्रेनिंग की ज़रूरत है। तो मतलब आई एम सीइंग अ लॉट ऑफ डिफरेंट एस्पेक्ट्स दीज डेज। तो जैसे ये गाना है, Audience is a mixed bag anyway. I think हाँ एग्जैक्टली, ऑडियंस इज मिक्स्ड बैग। सो beginning people are there who, as you said, they are able to sing songs very well, but वो उसके पीछे क्या चल रहा है पता नहीं है। वो नहीं, हाँ करेक्ट, So your answer will cover all the doubts. होपफुली या सो जैसे ये गाना है सा, तो मैंने ये सी शार्प पे लिया हुआ है, मेरे लिए डी शार्प इज गोइंग टू बी टू मच। अभी ना जाओ छोड़ कर के दिल अभी भरा नहीं। तो जैसे मैंने कहा कि कोई भी गाना जिसका आप पिच ढूंढना चाहते हैं उसका एक पर्टिकुलर लॉन्ग स्टैंडिंग कुछ कहीं पे कुछ वर्ड्स होंगे जो आके ठहरेंगे, तो वो होगा आपका सा, मोस्ट डेफिनेटली वो होगा आपका सा। सा इज नथिंग बट योर होम, एंड जो वो लाइन गाते वक्त अगर आपको होम जैसी फीलिंग आती है पर्टिकुलर वर्ड पे, दैट इज योर सा। तो जैसे अभी ना जाओ छोड़ कर के दिल अभी भरा नहीं सा। तो ये हुआ आपका सेकंड स्टेप कि आपने गाने का पिच निकाल लिया। तो दिस इज़ योर सा। एक बार आपने सा डिसाइड कर लिया तो देन आप तानपुरे को ट्यून करिए और पता चलेगा कि ये कौन सा स्केल है। तो ये मैंने देखा कि ये सी शार्प स्केल है। अच्छा, नाउ कम्स वेयर इज़ द सॉन्ग स्टार्टिंग। गाने को उठाए कहाँ से? गाने का पिच पता चल गया, मेरा पिच पता है, अब गाने को उठाना कहाँ से है? सा। तो इस पे भी मेरा एक ट्यूटोरियल है जिसमें मैंने कवर किया हुआ है कि तानपुरे पे कैसे गाएंगे। तो सबसे पहली बात तो आप कैरियोके को रखिए साइड में एंड कम टू तानपुरा टू एक्चुअली परफेक्ट एनी सॉन्ग। हाँ एक मिनट, हाँ बहुत ज़रूरी है। मैं ये कह रहा था कि कैरियोकी ट्रैक एक्चुअली मैंने भी यूज़ किया है, लेकिन मुझे लगता है कि कई मायनों में डिससर्विस भी किया है उसने अपने म्यूज़िक को। एग्जैक्टली हाँ। और लोग गा लेते हैं, लोगों को म्यूज़िक याद रहता है, रट्टा हो जाता है म्यूज़िक। जितना आप सुनेंगे तो म्यूज़िक जैसे जैसे रट्टा हो गया है, आपको पता है रफली गाना कहाँ से कैसे शुरू हो रहा है, पता है। मतलब म्यूज़िक के ऊपर आपको गाना बिठाना है वो आपको पता है, पर आपको पता नहीं है गाना शुरू कहाँ से हो रहा है, गाने के नोट्स कौन से हैं। तो वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आप जब भी कोई गाना गाएंगे तो कुछ वर्ड्स होंगे जिनमें हरकतें होंगी, जिनमें कुछ नुएंसेस होंगे। वो अगर आपको पता नहीं है और आप कुछ भी उसमें मतलब डेफिनेट कुछ गा नहीं रहे हैं, कुछ मिमिक कर रहे हैं ओरिजिनल ऑडियो को, अगर आप ऐसे ही सुन सुन के मिमिक कर रहे हैं, then that is not a good habit, I would say. मतलब that is not helping you to self improve further on the song and not helping you to perfect the song. तो एक तो हमने देखा सेकंड स्टेप, जो गाने का पिच हमने ढूंढ लिया। देन कम्स गाना शुरू कहाँ से हो रहा है। तो सा अभी 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 न जाओ
छोड़ कर. So now coming to the first note. अभी गा आ. तो ये हुआ ग. तो ये हो गया आपका ग ऑन सी शार्प. अब मेरे पास कुछ लोगों ने ये भी सवाल किया है कि आपने ये जो आपने बताया ये सी शार्प के लिए है, व्हाट अबाउट डी, व्हाट अबाउट बी. तो यही है आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज कि एक बार आपको ग पता चल गया कहाँ से शुरू हो रहा है या पर्टिकुलर वर्ड कौन से नोट पे है या जो भी है उस गाने का, जो भी सारे डिटेल्स है, दैट इज यूनिवर्सली ट्रू फॉर ऑल स्केल्स, ऑल पिचेस दैट यू पिक. तो आपने अगर सी शार्प स्केल पे ये गाना फिगर आउट किया है और उस पे अगर गा ऐसे साउंड कर रहा है और ग से गाना उठ रहा है, तो आपका ये सेम गाना बी से भी अगर आपने गाने की कोशिश की तो बी पे जो ग होगा वहीं से शुरू होगा. तो सेम नोट्स ही यूज होते हैं थ्रू आउट द सॉन्ग. ओनली थिंग द होल सॉन्ग शिफ्ट्स फ्रॉम ऑक्टेव फ्रॉम एवरी पिच टू द अदर पिच. ट्रांसपोज कर देते हैं बस. राइट. अपने म्यूजिक में वही एक मेन है ना, अपना इंटरवल बेस्ड है. और यहाँ इन लोगों का लाइक A is 440, तो वो वहीं से चलेगा. हाँ, राइट. या सो दैट इज योर थर्ड कि गाना कहाँ से उठ रहा है, और उसको हम परफेक्ट करेंगे. उसके बाद जो आता है स्टेप नंबर 4, विच इज पे अटेंशन टू द लॉन्ग स्टैंडिंग वर्ड्स जिन पे आके गाना रुक रहा है. अब ज़रूरी नहीं है कि वो सारे लॉन्ग स्टैंडिंग वर्ड्स सा पे आके रुके. कुछ तो है, डेफिनेटली दे विल गिव यू अ फील ऑफ कि ये आपका होम होना चाहिए, ये आपका सा होना चाहिए. एंड ऑफ कोर्स इट इज़ गोइंग टू बी अ लिटिल बिट ऑफ ट्रायल एंड एरर इनिशियली जब आप स्टार्ट करेंगे पिच ढूंढना गाने का. बट आगे चल के जैसे स्टेप 4 में अभी हम देखेंगे कि लॉन्ग स्टैंडिंग वर्ड्स आपको देखने हैं कि गाने में कुछ वर्ड्स हैं जो ठहराव वाले हैं. फॉर एग्जाम्पल, अभी ना जाओ छोड़ कर आकर, दिस इज रे. सारे कर के दिल अभी भरा नहीं सा. तो मेरे ख्याल से अगर आपको कोई भी गाना परफेक्ट करना है, आपको अच्छे से सीखना है इस गाने को, किसी भी गाने को, करियोके पे नहीं, अपने आप से तानपुरे पे लगा के, तो ये सारे स्टेप्स आपको ज़रूर करने चाहिए. डेफिनेटली डू दिस स्टेप बिकॉज दिस विल हेल्प यू टू ऑलवेज कीप यू एंकर्ड टू द तानपुरा, एंकर्ड टू द ट्यून ऑफ द सॉन्ग. आप भटक नहीं जाएंगे, आप कभी भी बेसुरा नहीं होंगे. अगर आपने ये होमवर्क किया हुआ है कि आपने गाना लिख लिया, और लिखना ज़रूरी है, ऐसे नहीं कि प्रिंट मतलब टाइप कर लिया और वहाँ पे कुछ आप लिख रहे हैं, बिकॉज इट्स नॉट वेरी यूज़र फ्रेंडली. जहाँ तक मुझे लगता है, आप हमेशा खुद अगर लिखेंगे तो वो आपके दिमाग में अच्छे से बैठती है चीज़ें. तो आप गाना लिख लीजिए. बड़े आर्टिस्ट लोगों ने नोटबुक रखी है एकदम कलर कोडेड करके कि कहाँ पे क्या है, स्वर से लेके हरकत से लेके जो वोकल डायनेमिक्स है वो सारा कुछ वो नोटेट करते हैं. हाँ, एग्जैक्टली. तो ये बहुत ज़रूरी है. और आप देखेंगे कोई भी गाना आप खुद से अगर लिखेंगे वर्सेस कोई भी गाना आपने ऐसे ही लिरिक्स उठा के आप गा रहे हैं इंटरनेट से, उसमें वो तैयारी नहीं होती है जितनी आपकी लिखने में, और उसमें वो जो आप मेहनत डाल रहे हैं वो दिखता है. इट डेफिनेटली शोज इन योर प्रेजेंटेशन. तो आप ज़रूर उस गाने को लिख लीजिए. और जो लॉन्ग स्टैंडिंग वर्ड्स है, आपको लग रहा है कि ये यहाँ पे जाके ठहराव वाले कुछ वर्ड्स हैं, उन वर्ड्स के नोट्स आपको उनके नोट्स एक आधी होंगे ज़रूर, 1 या 2, तो वो आप लिख लीजिए. जैसे कर, अभी ना जाओ छोड़ कर, फिर कि दिल अभी भरा नहीं. ओके, देन कम्स द नेक्स्ट स्टेप विच इज स्टेप नंबर 5, कि आपको सुर में रहना है थ्रू आउट द सॉन्ग. वो कैसे करें? आपने तानपुरा लगा लिया, आपको पता है अपना पिच, गाना भी आपको पता है कहाँ से शुरू हो रहा है, आपने सब होमवर्क कर लिया, पर आप जैसे ही गाने गए तो आपको पता नहीं कि आप क्या गा रहे हैं और फिर सुर भटक गए.
इसको अवॉइड करने के लिए आपको क्या करना चाहिए, किसी भी गाने में प और सा, most of the songs will have pa or sa unless it's a song based on some rag which doesn't have pa, but mostly sa तो होते ही हैं, और pa नहीं तो ma, जो भी पर जो भी वर्ड्स इन पा सा से गुजर रहे हैं उन वर्ड्स को ध्यान रखिए. नाउ गोइंग बैक टू आवर एग्जाम्पल, अभी ना जाओ छोड़ कर सा नि धा नि रे सा, सो छो वाज ऑन सा. आपको ये लिख लेना चाहिए कि कौन से वर्ड्स लिरिक्स में पा और सा से होते हुए जा रहे हैं. छोड़ कर के दिल अभी पा भरा नहीं सा. तो ये एक ही लाइन पे हमने इतनी मेहनत की है, देखिए कि अभी भी हम डिकोड किए जा रहे हैं कि उस लाइन का शुरू कहाँ से हो रहा है, प कहाँ है, सा कहाँ है, क्या कौन से नोट्स कहाँ पे है, लॉन्ग स्टैंडिंग वर्ड्स कौन से हैं. तो एक एक लाइन को अगर आप ऐसे नोटेट करेंगे और आपको हर एक नोटेशन, हर एक नोट को लिखने की ज़रूरत नहीं है, या हर एक वर्ड को ऐसे लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन की वर्ड्स या की नोट्स वाले वर्ड्स उनको आप मार्क कीजिए, प वाले सा वाले वर्ड्स मार्क कीजिए, और कहाँ से शुरू हो रहा है ये सारी चीज़ें मार्क कीजिए. एंड देन वंस यू कम विथ योर होमवर्क कि अच्छा प कर लिया, सा कर लिया, अब अगली बार जब आप गाएंगे, नाउ कम्स द स्टेप नंबर 6 which is actually practically singing the song with all your 5 steps. तो जब आप गाने जाएंगे तो आपको पता चलेगा, और आपको ध्यान भी लगाना है कि सा पा मैंने लिख तो लिया है, लेकिन अभी मुझे सा पे टिकना है. अभी ना जाओ छो, अब मैंने अगर ध्यान नहीं दिया तो छो बेसुरा हो सकता है, छो थोड़ा हट गया, तो सा से अगर हट गया तो फिर वो नीचे नीचे प्रोपगेट होता जाता है. फिर वहाँ से एक बार आप बेसुरे हो गए तो मुश्किल है आगे चल के. करेक्ट. तो ये सारी चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं अपने गाने को इम्प्रूव करने के लिए. ये अच्छा बताया, एक रोड मैप हो गया कि भाई एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो हम सा और पा को पहले पहचान लें. वो इंडिया में पहले होता था जीपीएस के पहले कि एक पान दुकान के पास रुक के पूछ लिया तिवारी जी का घर कहाँ है. यस डेफिनेटली. हाँ वो तो अभी भी हाँ, कहाँ से लेफ्ट लेना है, कहाँ से राइट लेना है, बस वो नुक्कड़ पता होना चाहिए, आगे हम देख लेंगे. तो वही, तो दैट इज एंकर पॉइंट, राइट. सो आई कॉल देम एंकर नोट्स इन एनी सॉन्ग. तो ज़रूर, और ये चीज़ मैंने इसमें भी कवर किया है वीडियो ट्यूटोरियल में, अभी लेटेस्ट वाला, कि आप कोई भी अलंकार जब गाते हैं, पलटा जब गाते हैं, तो उसमें भी आप यही चीज़ें, ऑफकोर्स वो तो सरगम वाले ही सरगम ही है, लेकिन आप हमेशा जब पा से गुजरेंगे, जब सा से गुजरेंगे, तो पे एक्स्ट्रा अटेंशन टू द तानपुरा अराउंड दोज नोट्स, on those notes, and then fix yourself. हो सकता है कि आप थोड़ा आपकी फ्रीक्वेंसी चेंज हो गई है, आपका प सही नहीं लग रहा है, या फिर म से ही भटक रहे हैं, या प सही लगा, धा पे जाके आप स्टेप अप नहीं कर रहे हैं, एंड देन सा गया कहीं और. तो अगर आपने ध्यान दिया है इन सारी चीज़ों में, और अगर आप हमेशा, लाइक फॉर एग्जांपल, जैसे अभी सारे गा रे गा मा वाला जो एग्जांपल मैं दे रही थी, सारे गा रे गा मा पा धा, तो देखिए प कितनी बार आया, गा मा पा धा नि धा नि सा नि धा नि धा पा मा गा रे सा. तो हर बार सा पा से आप जैसे पास करेंगे, तो आपको वो ध्यान देना है हमेशा कि मैं सही गा रहा हूँ या मैं सही गा रही हूँ कि नहीं. And I keep getting this question, how to even judge ourselves कि हम सही गा रहे हैं कि नहीं.
और ये इसका इसका तो खैर बहुत मतलब काफ़ी कुछ हम बोल सकते हैं इसके बारे में, बट उसमें मेन की एस्पेक्ट जो है वो है कि आप अपने आप को सुनिए, और दूसरा है कि आप जब अपने आप को सुन रहे हैं, आप तानपुरे को भूल मत जाइए। अपने आप को सुनते जा रहे हैं लेकिन तानपुरा कहाँ है, और आपका वॉइस तानपुरे के साथ मैच हो रहा है कि नहीं, प आपका उसके साथ मैच हो रहा है कि नहीं, सा मैच हो रहा है कि नहीं, ये सारी चीज़ें आपको यू हैव टू बी ऑलवेज एक्टिवली लिसनिंग टू what is coming out of your aura, I would say, like what you're producing, what sounds you're producing, vocally as well as the tanpura that you're playing. ऐप में बजाइए या फिर कोई और इलेक्ट्रॉनिक या मैनुअल तानपुरा। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखना है, तब जाके आप पता कर सकते हैं कि आप सही गा रहे हैं कि नहीं। खैर इसमें और भी पॉइंट्स इंक्लूड हो सकता है, बट आई लेट यू आस्क योर नेक्स्ट क्वेश्चन। एक पॉइंट जो दिमाग में आ रहा था कि हाँ यमन पता है, जैसे ये हालांकि यमन कल्याण बेस था ये थोड़ा, करेक्ट। हाँ लेकिन यमन जिसको पता है तो वो उसमें से फ्रेज भी निकाल लेंगे फिर। हाँ एग्जैक्टली, और मैंने कवर भी किया है सेम मेरे ट्यूटोरियल में कि तीसरा जो भी एस्पेक्ट है वो है कि ये सारे नोट्स आपने निकाल लिए, लेकिन अगर आपको थोड़ा राग का चलन पता है और आप जैसे ही गाना शुरू हो रहा है तो आपको पता है कि अच्छा इसमें तो नीरे गा आ रहा है, इसमें तो पामागा तीव्रमा मध्यम लग रहा है, शुद्ध मध्यम भी लग रहा है, तो आपको पता होगा कि अच्छा ये शायद यमन या यमन के आसपास का होगा। देन हाँ, तो फिर वो यमन कल्याण और फिर वो सारे नोट्स निकालना बहुत आसान हो जाता है अगर आपको एक बार राग पता चले, एंड वाइस वर्सा एज वेल, कि आपको नोट्स पता चले तो आप राग भी निकाल सकते हैं चलन के हिसाब से। जैसे वो जा रहा था कि दिल, तो मुझे एकदम लगा रेमा जा रहा है वो। हाँ करेक्ट। तो वही बिल्कुल आप अगर आपको बिल्कुल बेसिक भी अगर आपने सीखा है या सुना है या कहीं से आपको नॉलेज है तो फिर वो आ जाता है। वो जैसे जैसे आप गाने तैयार करते जाएंगे, एक एक गाना आप देख सकते हैं, अब तक हमने सिर्फ एक ही लाइन को रेडी किया है और समझने की कोशिश की है, दैट इटसेल्फ हैज़ टेकन सो मच ऑफ एनर्जी एंड सो मच ऑफ टाइम। तो अगर पूरे गाने को आप रेडी करना चाहते हैं और ऐसे आप हर एक गाने को तैयार करेंगे तो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू बी ऑलवेज बी ऑन ट्यून एंड यू विल नो व्हाट यू आर सिंगिंग। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप गा तो रहे हैं, आपको पता नहीं क्या गा रहे हैं, और एक बार कैरियोके ऑफ हो जाए तो आपके नोट्स पता नहीं कहाँ। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो बिल्कुल आपको पता होना चाहिए कि मैं तानपुरे पे गा रहा हूँ और यहाँ से गाना शुरू हो रहा है। आई डोंट नीड अ कैरियोके हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं है, सिर्फ तानपुरा है, तो या यू कैन सिंग एनी सॉन्ग ऑन इट। आगे बढ़ता हूँ। हाँ तो एक ये ऑलमोस्ट आई वांटेड टू क्लब दैट टाइम, बट वो शुरुआत का क्वेश्चन तो था आवाज़ सुबह में हिलती है वाली सवाल जो था उसमें, और खरज रियाज। हाँ तो खरज रियाज बहुत सब जगह बताया जाता है। एक तो क्वेश्चन ये है कि उसके फ़ायदे क्या हैं, और दूसरा ये है कि उसको करें कैसे, क्योंकि खरज रियाज मतलब ये नहीं है कि कहीं वीडियो देख लिया और करना चालू कर दिया, वो आपको थोड़ा समझ के करना पड़ेगा। करेक्ट। हाँ, तो खरज रियाज क्यों करें, आपका फर्स्ट सेक्शन वही है ना। हाँ क्यों करें, क्योंकि खरज के जो नोट्स हैं वो नोट्स हमारे चेस्ट मसल्स से आते हैं, मतलब चेस्ट मसल्स से प्रोड्यूस होते हैं, और आप जितना आप खरज के नोट्स को रियाज करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, और आपको अगर ये भी करना है कि जैसे और भी मुझे क्वेश्चंस आते हैं कि मुझ में बेस वॉइस की कमी है, बेस वॉइस मेरा है नहीं, और कैसे उसको बढ़ाएं। तो अगर आपको ये भी सवाल है कि मुझे बेस वॉइस को और थोड़ा इन्हांस करना है, स्पेशली इन मेल सिंगर्स, थोड़ा बेस हो तो अच्छा लगता है, एंड फीमेल सिंगर्स में भी जैसे गज़ल्स आप गाते हैं तो थोड़ा और बेसी वॉइस अगर है तो और भी मज़ा आता है उन गानों को सुनने में। तो ज़रूर खरज रियाज से ये सारे फ़ायदे हैं। एक तो आपका बेस वॉइस अच्छे से तैयार होता है,
आपके चेस्ट मसल्स और ज़्यादा एक्टिवेट होते हैं। आप जैसे जैसे खरज का रियाज करेंगे तो आप वाइब्रेशंस फील करते जाएंगे। आपको ऐसा लगता रहेगा कि आप जितना और ज़्यादा आप प्रैक्टिस कर रहे हैं खरज के नोट्स को, और भी आपके चेस्ट मसल्स वाइब्रेट हो रहे हैं, एंड दैट इज़ वेरी एसेंशियल टू प्रोड्यूस द रिवर्ब, द रेजोनेंस इन योर वॉइस। अब देख सकते हैं कुछ लोगों की आवाज़ में ना एक नेचुरल सी गूंज होती है। उनको जैसे उन्होंने फ़ोन पे भी कुछ रिकॉर्ड किया तो बिल्कुल सुनने में मज़ा आ जाता है कि वाह वाह क्या बात है। तो उन क्या डिफरेंस है कि किसी और सिंगर को ले लेते हैं जिनकी आवाज़ में वो बात नहीं है। दैट इज़ बिकॉज उस सिंगर की आवाज़ में वो गूंज है, और वो गूंज नेचुरली प्रोड्यूस होती है जब आपके मसल्स अच्छे से वाइब्रेट कर रहे हैं एंड यू आर एक्चुअली टेकिंग दोज वाइब्रेशंस अलोंग। तो जैसे आप अब ये डी सी शार्प बहुत ऊंचा हो जाएगा, आई विल ब्रिंग इट डाउन टू ए शार्प। सा सा तो जैसे जब मैं सा गा रही हूँ, दूसरा तरीका भी है सा गाने का, जैसे सा, तो ये भी शायद सुर में गाया मैंने, दोनों सा थोड़ा बहुत सिमिलर ही है, लेकिन सेकंड वाला जो मैंने सा गाया उसमें मैंने मेरे चेस्ट मसल्स और चेस्ट वाइब्रेशंस को बढ़ावा नहीं दिया है। तो मैं बिल्कुल दबे तरीके से सा मैंने नॉर्मल सा गाया है। लेकिन पहला जो मैंने सा, ये जो सा मैंने गाया है, हाँ फुल्ली प्रोजेक्ट करके, हाँ बिल्कुल फुल्ली प्रोजेक्ट करके जब मैंने सा गाया है तो मुझे एक्चुअली अपनी गूंज सुनाई दे रही है। और वो गूंज किससे प्रोड्यूस होती है? वो चेस्ट मसल्स के जब वाइब्रेशंस प्रोड्यूस होते हैं वो होती है एक्चुअल गूंज। तो वो बहुत एसेंशियल है, और वो तभी आता है जब आप खरज का रियाज करेंगे। आपको पता चलेगा कि खरज, एक तो आपकी आवाज़ का पोटेंशियल आपको पता चलेगा कितने नीचे जा सकता है, एंड ऑफ कोर्स यू कैन इंक्रीज द रेंज डाउन। तो आपको गूंज अगर चाहिए अपनी आवाज़ में तो डेफिनेटली खरज रियाज इज़ वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स टू डू। सेकेंडली, जैसे कहते हैं कि खरज के नोट्स अगर आप रियाज करते हैं तो आपके हाई नोट्स और भी निखर के आते हैं। द रीज़न इज़, मतलब ये मैं जब बड़ी हो रही थी तो मैं सुनती थी और मुझे लगता था ये ऐसे कैसे हो सकता है, ये बिल्कुल सही नहीं है। तो ये अभी मुझे जाके समझ में आता है, अभी कुछ साल हुए हैं, इस पे मैंने काफ़ी सोच दौड़ाई है अपनी। तो मुझे जहाँ तक समझ में आती है ये बात कि जब आप खरज का रियाज करते हैं तो आपके बेस मसल्स जो हैं, आपका जो फाउंडेशन है वो तैयार हो रहा है। और आपका बेस अगर स्ट्रॉन्ग है, आपके फाउंडेशनल मसल्स अगर स्ट्रॉन्ग है एंड दे आर ऑल जॉइनिंग टुगेदर टू हेल्प यू प्रोड्यूस द वॉइस, तो वो वॉइस न कि सिर्फ खरज के लिए यूज़ हो रहा है बट इट्स एक्चुअली हेल्पिंग यू टू प्रोजेक्ट इट आउटवर्ड। तो जितना आप ऊंचे जाएंगे, ऊंचे स्वरों का रियाज जब जितना भी आप करेंगे तो वो मसल्स दे आर एक्चुअली गोइंग टू हेल्प यू टू प्रोजेक्ट योर वॉइस अप देयर। एंड दोज मसल्स आर नॉट जस्ट सेपरेट चेस्ट मसल्स, वो जैसे जैसे आप प्रोजेक्ट करते जाएंगे, आप ऊंचे गाते जाएंगे, आपके स्टमक मसल्स भी ज्वाइन करेंगे। तो एक जो हमारा जो टॉर्सो है, इनफैक्ट जो कोर मसल्स है, चेस्ट मसल्स है, दे आर ऑल जॉइनिंग टुगेदर टू हेल्प यू प्रोड्यूस दैट साउंड। तो सिर्फ गले से, वॉइस बॉक्स से आवाज़ आ रही है, लेकिन आप जब वो गाना चाहते हैं, वो एक फील ऐड करके आप जब कुछ प्रेजेंट करना चाहते हैं या कोई गाना दिल से गाना चाहते हैं, तो ये सारी चीज़ें आती हैं उसमें। सिर्फ गले से गाने में कोई मज़ा नहीं है, लेकिन आपको सारे एस्पेक्ट्स ध्यान में रखते हुए और आपके वॉइस का जितना भी पूरा पोटेंशियल है उसको पूरा यूटिलाइज करके आपको तब जाके आप एंजॉय कर पाते हैं कि अपनी आवाज़ को आप एंजॉय कर पाते हैं तब जाके। तो दैट ऑल दीज इज़ अचीव्ड first primarily from Kharaj Riyaz.
तो खरज रियाज इज वेरी इट्स एक्चुअली क्वाइट टॉक्ड टॉपिक। तो सब लोग बोलते हैं खरज रियाज, लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है कि दिस इज़ द रीज़न वाई यू शुड एक्चुअली डू खरज रियाज। आपको अगर बेनिफिट पता है किसी चीज़ का, आप करने से पहले एक बार समझ लीजिए कि क्यों कर रहे हैं, एंड देन यू सी योर मोटिवेशन टू डू दैट। तो सो यही है, मतलब खरज रियाज और कैसे करें ये तो है। खैर देर इज़ अ सिस्टम, देर आर सम टेक्निक्स टू डू। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे आपने कहा, बिल्कुल सही कहा कि खुद को पहले देखना है कि खुद की आवाज़ कैसी है, और एक्चुअली कहाँ तक जाती है मेरी आवाज़, सा नी धा पा मा तक अगर कंफर्टेबली जाती है तो फिर वहाँ तक हम खरज के नोट्स का रियाज करेंगे, सारे वावल्स का करेंगे। तो दैट इज़ वन एस्पेक्ट ऑफ खरज रियाज एज वेल। ये आई डोंट रिमेम्बर किसके लेक्चर में सुना था मैंने, हाँ, उन्होंने कहा कि खरज में ऐसा वॉल्यूम यूज करना चाहिए जो केवल आपको सुनाई दे। हाँ, अच्छा, इतना बिल्कुल, हाँ, फिर वो एकदम डीप और बिल्कुल चेस्ट के वाइब्रेशंस आप यूज़ कर रहे हैं। करेक्ट, इट्स एक्चुअली नॉट अबाउट प्रोजेक्टिंग योर वॉइस इन द खरज नोट्स। तो जितना आप डीप जाते जाएंगे उतने वाइब्रेशंस आपको मिलेंगे चेस्ट के, और उतना ही आपकी जो गूंज आवाज़ में है वो और भी ज़्यादा उठ के आएगी। खुल के आएगी, राइट। करेक्ट। मुझे पर्सनली जो फायदा हुआ है, मैं जब से कर रहा हूँ इसको, तो कंपन जो सुबह हिलती है, मुझे इससे फायदा हुआ कि वो कंपन फिर, मतलब एक दिन में तो नहीं गया, कुछ महीने हाँ, लगे उसको। मुझे लगता है कम से कम 3-4 महीने लगे। हाँ, सुबह जो है कंपन सुबह फिर भी होता है, लेकिन अब जल्दी सध जाता है। करेक्ट, हाँ, तो हाँ, खरज का वो भी एक फायदा है स्टेबिलिटी लाने के लिए। यस, डेफिनेटली। और मैं कंपन का जो क्वेश्चन था उसमें मैं मुझे पता ही था आगे क्वेश्चन आने वाला है खरज का, तो यस, दैट इज़ आल्सो एडेड टू द फर्स्ट क्वेश्चन दैट वी टॉक्ड अबाउट कि कंपन है सुबह तो उसको कैसे स्टेबल किया जाए। तो डेफिनेटली खरज, इसीलिए मैं बोल रही थी ना कि रियाज के तरीके तो हैं कुछ, लेकिन another thing that which probably nobody talks about is staying consistent about the बड़ा है ना ये, मतलब टॉपिक, और ये हाँ, गीत अपने आप में इतना बड़ा सागर है कि एक सीढ़ी चढ़ो तो 10 और दिखती हैं सामने कि अरे ये भी करना है, ये भी ये करना है। भी हाँ, करेक्ट। और फिर अपने पास टाइम कम है और हमें पता नहीं कि कितना कौन सी चीज़ कितनी करनी है। सिर्फ अलंकार करने हैं या अलंकार के साथ कुछ और, मतलब आप अगर राग सीख रहे हैं तो वो भी प्रैक्टिस करनी है, या फिर लाइट सॉन्ग्स भी है प्रैक्टिस करने के लिए, आप जो भी गाते हैं जनरली वो भी है। और अलग अलग, जैसे सुबह का जो रियाज है खरज, ओमकार और भ्रामरी प्राणायाम और ये सारी चीज़ें जो भी है, तो सुबह का रियाज ही इतना आधे घंटे का एकदम टाइट रियाज टाइम है। सिर्फ अलंकार के बिना ही अगर आप ये सारी चीज़ें खरज और ओमकार और हमिंग एंड भ्रामरी ये सारी चीज़ें करते हैं तो उसी में आधा घंटा निकल जाता है। आराम से। हाँ, उसके बाद आपको लगता है अरे अलंकार भी तो है करने हैं और उसमें क्या क्या करने हैं। तो जैसे जैसे आप थोड़ा थोड़ा करके अपने आप बैठते जाएंगे, अपने आप से आप पूछते जाएंगे कि और मुझे क्या चाहिए, मेरे पास इतना टाइम है, अब मैं क्या करूं। सो यू विल फाइंड अ वे टू फिगर आउट योर ओन स्केड्यूल एंड योर ओन स्ट्रक्चर ऑफ रियाज। और मैं ये बोलती हूँ कि रियाज का स्ट्रक्चर थोड़े दिनों के लिए सेम रखिए और फिर आगे चल के आप अपने आप को इवैल्यूएट करते रहिए और चेंज द स्ट्रक्चर एज यू नीड। जैसे कि अभी मान लीजिए क्लास में कुछ सिखाया जा रहा है, वो करना भी ज़रूरी है और खरज रियाज भी करना ज़रूरी है, पलटे भी करने ज़रूरी है। आपने जो पहले सीखे हैं राग या जो भी सॉन्ग सीखे हैं वो भी करने ज़रूरी है। तो आप कितना कुछ करेंगे, राइट? तो देन यू फिगर आउट कितना टाइम आप मैनेज कर पाएंगे और कितना किसको दे पाएंगे। बट देन या इट इज़ अप टू यू हाउ यू वांट टू टेक इट। सुबह कर लो, कुछ शाम को कर लो, कुछ शाम, हाँ, करेक्ट है। जो चीज़ सुबह होगी
वो फिर शाम को नहीं हो सकती, जो सुबह होगी वो सुबह को ही होगी। एग्जैक्टली या जैसे खरज का रियाज वो बिल्कुल सुबह ही किया जाता है और सुबह ही आवाज़ उसके लिए तैयार रहती है। और शाम को करेंगे तो वो मज़ा नहीं आएगा और आवाज़ वार्म्ड अप होती है तो खरज के नोट्स नहीं लगेंगे एंड ऑल दैट। सो बढ़िया। इसी में खरज से रिलेटेड ही जो लॉन्ग नोट रियाज भी बहुत बताया जाता है कि अपने हिंदुस्तानी इसमें कि स्टैंडिंग नोट्स का रियाज करो, करेक्ट। उसके बारे में क्या कहना है? वो बहुत इसेंशियल है। मुझे याद है जब मैं शुरू मैं तानपुरे पे शुरू किया मैंने गाना रियाज, तभी बिल्कुल आई थिंक आई वाज 7-8 ईयर ओल्ड, जब तानपुरे पे प्योर मतलब हारमोनियम नहीं सिर्फ तानपुरे पे गाना है। मुझे मेरे गुरुजी ने बोला कि अब हारमोनियम पे नहीं बस तानपुरे पे। तो फिर मैंने नोटिस करना शुरू किया कि मेरी आवाज़ हिलती है। जब मैं सा लगाती हूँ तो सा आगे पीछे होता है। तो फिर जाके वो बस एक कंसंट्रेशन और एक बोलते हैं ना बीइंग अवेयर ऑफ व्हाट यू आर डूइंग एक्चुअली सॉल्व्स द प्रॉब्लम हाफ, और फिर उसको आधा ही प्रॉब्लम रह जाता है उसको फिक्स करने में। तो आधी चीज़ तो एक तो आप खुद को पहचानिए और आपको लगता है कि ये मैं गलत कर रही हूँ तो दैट इटसेल्फ विल हेल्प यू टू गेट देयर। तो लॉन्ग स्टैंडिंग नोट्स से ही मैंने आगे की शुरुआत की। जो एक्चुअल एक्सपोनेंशियल वे ऑफ ख्याल गायकी या जो भी है वो लॉन्ग स्टैंडिंग नोट्स के रियाज से ही मैंने शुरुआत की है उसकी। तो बहुत इसेंशियल है एंड इनफैक्ट सा का रियाज सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। तो सा का ही रियाज, सिर्फ सा ही लगाओ और सा इतना अच्छे से लगना चाहिए। सा के जैसे बाकी नोट्स भी लगने चाहिए लेकिन सा का इतनी अहमियत है कि जैसे हमने आप नोटिस करेंगे एक आप सा लगाएंगे आपकी सांस ख़त्म होती है तो सा का भी टोन चेंज हो जाता है, फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाती है, ऑफ हो जाता है। किसी में तो बिल्कुल सुर से ही निकल जाते हैं। तो वो ध्यान देना और अपने आप को सुनना अच्छे से कि एग्जैक्टली कहाँ पे जाके मेरी सांस ख़त्म हो रही है। तो वो गेज करना कि सांस ख़त्म होने से पहले आई नीड टू बी मोर अवेयर ऑफ हाउ लॉन्ग कैन आई प्रोलॉन्ग द सा, और उसको वैसे ही टेल एंड मेंटेन करना उसी फ्रीक्वेंसी पे। दैट इज़ वेरी एसेंशियल फॉर लॉन्ग स्टैंडिंग रियाज। तो वो एक बहुत एसेंशियल टेक्निक है लॉन्ग स्टैंडिंग रियाज के लिए। और ये बिल्कुल आप सा से शुरुआत कीजिए और फिर आगे चल के आपका रे गा मा पा और हायर नोट्स थोड़े डिफ़िकल्ट होते हैं इसमें क्योंकि ऑलरेडी आप हाई गा रहे हैं और सांस थोड़ी पहले से ही स्ट्रेन्ड होती है। तो इसलिए पहले कहा जाता है कि सिर्फ सा का ही आप रियाज करो, काफ़ी दिनों तक करो एंड देन यू स्टार्ट रिकग्नाइजिंग योर ओन लूप होल्स कि कहाँ से आपको लगेगा कि सांस ज़्यादा है नहीं। फिर आप कुछ दिन रियाज करेंगे तो फिर आपकी सांस थोड़ी और बढ़ने लगेगी। सो यू स्टार्ट फीलिंग मोटिवेटेड कि हाँ मेरी सांस अभी थोड़ी है, बट देन वर्क आउट ऑन द टेल एंड ऑफ द नोट्स और बिल्कुल सीधे पॉइंट पे जाके सा को हिट करना। सा ऐसे नहीं, बिल्कुल सीधे। लाइक आई डोंट नो इफ आई कैन गिव एन एग्जांपल। इस वक्त थोड़ी आवाज़ उतनी स्टेबल नहीं है मेरी। सा तो जैसे जैसे आवाज़ मेरी सांस ख़त्म हुई तो उसी पे जाके रुकना चाहिए। ऐसे नहीं कि सा, तो ये ऐसे ऐसे नीचे नीचे आते जाता है नोट अगर आप ध्यान नहीं देते हैं तो। So you are suggesting just fade out the volume, not the pitch.
एग्जैक्टली, फेड आउट द वॉल्यूम नॉट द पिच, यू सेड इट वेरी करेक्ट. बट आपको वो फेड आउट कहाँ से कितना करना है और कहाँ से शुरू करना है फेड आउट, वो आपको गेज आ जाएगा जैसे जैसे आप रियाज करेंगे, और जैसे जैसे आपको पता होगा कि मेरी आवाज़ इसके बाद नाउ इट इज़ टाइम फॉर मी टू एंटिसिपेट द फेडिंग आउट. तो इससे आपको आप ये लॉन्ग स्टैंडिंग नोट का जो रियाज आप पूछ रहे हैं, टू मी दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि आप इस पे काम कीजिए. इसी से सांस भी बढ़ेगी, मतलब दोनों. हाँ, सांस भी बढ़ेगी आपको. आपका दिमाग और तेज़ होगा. आई वुड से कि आप बिना सोचे समझे, बिल्कुल गाने में कोई पॉइंट नहीं है, लेकिन आप एक्टिवली अपने आप पे काम कर रहे हैं, आप एक्टिवली अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं. तो दैट हेल्प्स इन सेल्फ इम्प्रूवमेंट, सेल्फ अट्यूनमेंट, एंड इट जस्ट शार्पन्स योर ब्रेन. राइट. नहीं, मुझे तो मतलब मैंने चैनल का नाम नाद ब्रह्मा रखा है, लेकिन मुझे स्पिरिचुअल इसमें बहुत दिखने लगा है आजकल कि हम जैसे त्राटक बोला जाता है, त्राटक में वो दिया की लौ को, दिए की लौ की तरफ. हाँ, आप सा को देख रहे हैं, अपने आप को पहचान रहे हैं कि भाई आपकी लिमिट क्या है, आपका आप मतलब भीतर आप वो पियानो तो की तरह तो उसको नहीं छेड़ सकते. एग्जैक्टली. हाँ, वो कंट्रोल कर रहे हैं, वही एक मतलब एक बड़ा साधना का एक मार्ग जैसा लगता है. वेरी ट्रू. या बिल्कुल बिल्कुल. और ये गला जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है वो एक्चुअली इनविजिबल इंस्ट्रूमेंट है. आपको दिखता नहीं है, आपको बस वो गेज करना होता है. और जितना आप ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जितना आप रियाज करेंगे, जितना आप सधेंगे, उतना आपको कॉन्फिडेंस आएगा अपने पे, और अपने गाने पे और अपनी आवाज़ पे, और उतनी ही अच्छे से आपकी आवाज़ बाहर आएगी और खुल के आएगी. तो क्योंकि बाकी के सारे इंस्ट्रूमेंट्स हम दिखते हैं, वो कौन से नोट, अगर नोट गलत गा रहे हैं या बजा रहे हैं, नॉट गा रहे हैं, बजा रहे हैं, तो आप फिक्स कर सकते हैं कि हाँ यहाँ पे ये नोट नहीं है, वो नोट है, ये कॉर्ड नहीं है, वो कॉर्ड है. लेकिन गला एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, वो दिखता नहीं है. राइट. तो इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिसिंग. अच्छा, इसी से रिलेटेड थोड़ा सा और सवाल की, ठीक है, खर्च कर लिया, कांपना निकाल दिया, सांस भी बढ़ा ली, आवाज खोल भी ली, है ना. अभी हम उसको सुरीला कैसे बनाएं? सुरीला मतलब एस्थेटिकली प्लीजिंग कैसे बनाएं? एक तो हाँ, सुरीला ये होता है कि भाई आप सुर में हो, करेक्ट. गला फाड़ के गा रहे हो. हाँ हाँ, तो वो एस्थेटिक वैल्यू का आप जैसे बोल रहे हैं ना, वो. या तो वेरी वेरी गुड क्वेश्चन आई वुड से. और ये मुझे काफ़ी आते हैं सवाल कि आवाज़ में मीठापन कैसे लाए, या आप एस्थेटिकली प्लीजिंग कैसे बनाए आवाज़ को. तो उसमें तो एक पॉइंट जो है, जैसे क्लासिकल म्यूज़िक में आई वुड से हम लोग हमेशा बोलते हैं कि खुल के गाना चाहिए, स्टमक वॉइस ही यूज़ करना चाहिए. बहुत ज़्यादा स्टमक वॉइस का यूज़ होता है, और पता नहीं बहुत कम अगर मतलब आवाज़ थोड़ी बारीक होनी चाहिए जैसे आप ऊपर जाएंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं. मतलब हेड वॉइस एंड फॉल्सेटो आर काइंड ऑफ लाइक बिग नो फॉर क्लासिकल म्यूज़िक. लेकिन जैसे जैसे हाँ, तो बिल्कुल ही नो है. बिल्कुल ही नहीं. हाँ, फॉल्सेटो तो बिल्कुल ही नहीं. हेड वॉइस भी जैसे जब मैं सीखती थी तो मैं बिल्कुल हेड वॉइस क्या होता है मुझे पता ही नहीं था. मुझे एक मेरे जो गुरुजी हैं जिनके थ्रू मैं एग्ज़ाम्स दिया करती थी, तो उन्होंने मुझे फिर थोड़ा थोड़ा सिखाया कि देखो आप गा लगा रहे हो, ऊपर का जो तार सप्तक का गा है, उसमें आपकी आवाज़ को का इतना इंटेंसिटी ज़रूरत नहीं है. तो आप थोड़ा धीरे धीरे उसको हल्का करने की कोशिश करो. तो फिर मुझे धीरे धीरे समझ में आने लगा कि अच्छा यहाँ पे जाके थोड़ा हल्का गाएंगे तो और सुनने में अच्छा लगेगा. तो जैसे आपने कहा कि एस्थेटिकली प्लीजिंग कैसे बनाएं, तो एक तो आपका जो वॉल्यूम है थ्रू आउट इट शुड रिमेन सिमिलरली कांस्टेंट. मतलब सिमिलर, जैसे आप लोअर नोट्स पे भी गा रहे हैं तो वॉल्यूम जितना होना चाहिए, और मिडिल ऑक्टेव का जो भी पोर्शन आप गा रहे हैं वो सिमिलर वॉल्यूम, और हायर नोट्स पे भी सिमिलर वॉल्यूम. उसमें थोड़ा आगे पीछे होता है हायर नोट्स पे. ये वॉल्यूम अगर आपने मेंटेन कर लिया, आई वुड से
30% ऑफ द जॉब इज डन। कि आपको फिर आप जब कहीं पे गाएंगे या माइक पे गाएंगे तो आधा काम वहीं पे ख़त्म हो जाता है कि जो ऑडियो इंजीनियर का काम है वो काफ़ी इजी हो जाता है कि आपको आपका जो कंप्रेशन है वो इजी हो जाता है। लेकिन चलिए रियाज पे आ जाते हैं और खुद घर पे गाने पे आ जाते हैं। जब आप घर पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, रियाज कर रहे हैं, तो एक तो यस डेफिनेटली वॉल्यूम शुड बी सिमिलर। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मिडिल ऑक्टेव बिल्कुल जोश के साथ और अच्छे से बाहर आ रहा है लेकिन हायर ऑक्टेव में जाके आवाज़ बिल्कुल पतली हो जाती है, कभी कभी तो बिल्कुल थिन हो जाती है। वो नहीं होना चाहिए क्योंकि कुछ भी एस्थेटिकली प्लीजिंग लोगों को तभी लगता है जब आपको कानों में हर्ट ना हो। इट शुड नॉट हर्ट योर ईयर्स। हर्टिंग द ईयर्स कैन हैपन बाय 2 ways। एक तो बहुत गला फाड़ के गा रहे हो ऊपर के नोट्स में, आपको एस्थेटिक वैल्यू बिल्कुल ही नहीं पता है कि कैसे थिन डिम करना है या फेड करना है, थोड़ा आप उस पर ध्यान नहीं दोगे तो ज़रूर आपका वो कंट्रोल नहीं रहेगा हायर ऑक्टेव पे, एंड दैट इज़ गोइंग टू शो इन द प्रेजेंटेशन दैट यू आर गोइंग टू डू। तो वो एक पॉइंट है कि एस्थेटिकली प्लीजिंग होना चाहिए, और वो अगर आप गला फाड़ के गाएंगे तो नहीं होगा। तो एक तो है कि वो हर्ट करेगा सीधा डायरेक्टली कानों में कि थोड़ा कम होना चाहिए, ऊपर की तरफ लाउडनेस कम होनी चाहिए। सेकंड कब हर्ट होता है कानों में, जब आपकी आवाज़ सिमिलरली कांस्टेंट नहीं है, मतलब आप अच्छे से गा रहे हो और अचानक से हायर नोट जैसे रे गा जैसे ही आप ऊपर गए तो बिल्कुल थिन हो गया, या फिर आवाज़ अपने आप से एक डिप आ गई आवाज़ में और बारीक हो गई। तो वो मैंने काफ़ी लोगों में ये देखा है, और वो अपने आप स्विच तो कर रहे हैं लेकिन बहुत चुभता है कानों में कि अचानक से वॉल्यूम कम हो गया। तो दैट अगेन इज़ अनदर फैक्टर ऑफ मेकिंग योर वॉइस साउंड एस्थेटिक। the tonality हाँ, करेक्ट, गड़बड़ हो जाती है वो। करेक्ट या तो वो एक आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए। आप जब भी आप रियाज करेंगे तो अपने अगेन कमिंग बैक टू योर ट्रेनिंग एंड लिसनिंग टू योर सेल्फ, बीइंग अवेयर ऑफ व्हाट यू आर डूइंग, तो आपको अपनी आवाज़ थ्रू आउट द रियाज सेशन, थ्रू आउट जितना आप गाएंगे सिमिलर प्रतीत होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक जगह जाके आप खुद ही बोल रहे हैं कि मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा चिल्ला रही हूँ, कि वो चिल्लाना नहीं होना चाहिए। गाना मतलब गाना, इट्स नॉट अबाउट जस्ट थ्रोइंग योर वॉइस। तो वो बिल्कुल ध्यान में रखना चाहिए। अनदर थिंग इज़ खरज के नोट्स आपके लगने चाहिए अच्छे से, और खरज में गाना आना चाहिए। ऐसे नहीं कि रियाज करते वक्त सा नी धा पा मा तक चला गया और फिर जब गाने में हम यूज़ करेंगे तो वो वर्ड्स निकलते नहीं है मुंह से, अंदर ही अंदर रह जाते हैं। तो वो भी वॉल्यूम उतना होना चाहिए कि आप सिमिलर दिखे, आपको वो लेवल सिमिलर दिखे। सो दैट इज़ अनदर थिंग। इसमें अभी और भी पॉइंट्स हैं, जैसे कोई भी हरकत है, कोई भी मुर्की है, कुछ सरगम है गाने में, तो वो आपको डेफिनेट पता होने चाहिए कि आप क्या गा रहे हैं। दैट इज़ अनदर एस्पेक्ट ऑफ मेकिंग योर सिंगिंग एस्थेटिकली प्लीजिंग। आपको अगर आप सिर्फ आवाज़ को हिला रहे हैं, हरकत है समझ के, आपको लग रहा है कि अच्छा बस हिला देंगे तो शायद मिमिक हो जाएगा, ये बिल्कुल ना करें। ये बिल्कुल आपके नोट्स क्लियर होने चाहिए, आपके दिमाग में बिल्कुल पता होना चाहिए आपको कि ये सारे नोट्स मुझे इस हरकत में इसमें फिट होना चाहिए। तो वो डेफिनेट जो आप गा रहे हैं वो कॉन्फिडेंस नज़र आना चाहिए, एंड दैट इज़ अनदर एस्पेक्ट ऑफ मेकिंग योर सिंगिंग एस्थेटिकली ब्यूटिफुल। अगेन हाँ, और अगेन आकार, गाने में कहीं पे भी आपका कुछ आकार में आया, या फिर कोई वर्ड अच्छे से प्रेजेंट करना विथ फील, तो बहुत सारे, इनफैक्ट इसमें तो हम काफ़ी कुछ बोल सकते हैं। पर सब कुछ सबसे पहले तो अपने आप को पसंद आना चाहिए
आप जो गा रहे हैं आपके कानों में कैसा लग रहा है, तो दैट इज़ द रीज़न आई कीप एम्फसाइजिंग कि आप रिकॉर्ड कीजिए, इतने साधन हमारे पास हैं, रिकॉर्ड कीजिए ऑडियो वीडियो दोनों इनफैक्ट, क्योंकि हो सकता है ऑडियो में बहुत अच्छा सुनाई दे रहा है लेकिन वीडियो में आपका मुंह टेढ़ा करके आप गा रहे हैं या आप हमेशा ऐसे करके गा रहे हैं या ऐसे करके गा रहे हैं, तो दैट अगेन इज़ नॉट गोइंग टू बी प्लीजिंग एस्थेटिकली। हाँ, तो सब सारे एस्पेक्ट्स आते हैं गाने में। नहीं, ये देखा है कई बार मैंने कि अ, कोई बहुत अच्छा भी स्टेज शो चल रहा है और जब ऊपर के सुर लगने लगे तो वो चेहरा जो है गायक का थोड़ा बिगड़ने लगा, तो लगता करेक्ट। है कि इसको इतना टेंशन हो रहा है, फिर हमको भी टेंशन हो रहा है। हाँ, तो यही कहा जाता है कि अगर इफ़ यू आर एंजॉइंग ऑन स्टेज ऑडियंस इज गोइंग टू एंजॉय टू। तो आप अनदर पॉइंट दैट आई वांटेड टू मेंशन बट मैं भूल गई कि आप गाने की फील को भी ध्यान में रखिए जब आप गा रहे हैं कोई भी गाना। मोस्टली आई वुड से नॉट क्लासिकल बंदिश, क्योंकि क्लासिकल में इतनी ज़्यादा फीलिंग पे अहमियत नहीं दी जाती है, बस टेक्निकलिटी ज़्यादा होती है। लेकिन कोई भी गाना दूसरा जॉनर आप ले लेंगे, सेमी क्लासिकल में भी बहुत इम्पोर्टेंट है, गज़ल, ठुमरी, टप्पा इज़ वेरी टेक्निकल, बट हाँ कोई भी सेमी क्लासिकल जॉनर ले लेंगे या बॉलीवुड ले लेंगे, उसमें फील बहुत इम्पॉर्टेंट है। हर एक गाने, हर एक वर्ड, हर एक लेटर तो नहीं कहेंगे, शायद वर्ड कहना ज़्यादा उचित होगा, हर एक वर्ड की फील क्या है या इस लाइन की फील क्या है, उसके हिसाब से अपने वॉइस को मॉड्यूलेट करना, दैट इज़ अनदर एस्पेक्ट ऑफ मेकिंग योर सिंगिंग एस्थेटिकली प्लीजिंग। मेरे गुरुजी का जो, मैंने जब ये इंटरव्यू सीरीज चालू किया था तो मेरे हाँ हाँ पंडित देवाशीष दे, तो उनसे मैंने यही सवाल किया था कि जो वो तो बनारस के फेमस हैं वो, तो मैंने कहा ये बनारस का जो कहन जो होता है उसको थोड़ा बताइए क्या होता है। तो उन्होंने, मेरे वीडियो में है, उन्होंने एक जो होरी गाई है उसमें कैसे कैसे गोपियां कान्हा को लेके होली का कैसे कैसे एक्सप्रेशन दे रही हैं, वो एक पूरा एक्सप्रेशन पे ही थोड़ा 5 मिनट उन्होंने बताया है। तो वो मतलब क्या कहते हैं हम, रंजयते इति राग जो है, करेक्ट। गाया और किसी के दिल में नहीं पहुंचा तो फिर हाँ, तो उसमें कोई, हाँ करेक्ट। और ये बहुत आपको एग्जांपल्स मिल जाएंगे कि आपको गाने बहुत सुनने को मिलेंगे और बहुत टेक्निकल भी आप सुनेंगे, लेकिन आपको वो हर एक आपके आपके फेवरेट सिंगर्स क्यों फेवरेट हैं, हाँ, because they touch you, right? Probably one of the singers is touching you more than anybody else, तो इसलिए आप बोलते हैं ये मेरे बहुत अच्छे फेवरेट सिंगर है, इनका गाना मैं कभी भी सुन सकता हूँ, इनका गाना मैं कभी भी सुन सकती हूँ। सो दैट इज़ द रीज़न, बिकॉज वो दिल को छूने वाली जो बात है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। शायद हर एक में वो कैलिबर है, हर एक सिंगर में वो कैलिबर है, उनका अपना पोटेंशियल अलग अलग यूनिक टैलेंट्स हैं, लेकिन हर एक में वो प्रतिभा भी मौजूद है कि अपनी आवाज़ के ज़रिए वो आपको आपके दिल तक पहुँचे, आपके सोल तक टच करे, तो वो भी एक एस्पेक्ट है। एंड मोर यू पे अटेंशन टू द फील ऑफ द सॉन्ग, दैट विल कम आउट इवन मोर ब्यूटिफुली। तो जैसे हम एग्जांपल वही वापस वाला ले लें, अभी ना जाओ छोड़कर, हाँ, तो इसको कैन यू डेमोन्स्ट्रेट 2-3 वेज कि एक अच्छा है और एक मीडियम सा है, एक बुरा सा है, हाँ कोशिश करूँगी। लास्ट तक लेके, श्योर। या फिर आज जाने की जिद ना करो, या जो भी, दोनों ही अमन कल्याण है। हाँ, आज जाने की जिद ना करो एक आई थिंक विल बी बेटर आइडिया। ओके, तो ये जो नज़म है आज जाने की जिद ना करो, इसको हम कोई भी गज़ल ले लेंगे, नज़म ले लेंगे, वो ये इसलिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एक तो डेफिनेटली इसमें गायकी बहुत ज़रूरी होती है, आप कैसे किस अंदाज से प्रेजेंट कर रहे हैं वो भी इम्पोर्टेंट है, और दूसरी बात ये कि आप किस वर्ड में कितनी अहमियत दे रहे हैं, फीलिंग की कितनी अहमियत दे रहे हैं, वो भी
एक बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। एक चीज़ मैं बिफोर आई स्टार्ट डेमोन्स्ट्रेटिंग, एक चीज़ मैं बताना चाहूँगी कि आप देखेंगे कोई भी गाना अगर आपका बहुत अच्छे से मेमोराइज्ड नहीं है तो फिर आप उस फील को दर्शाने में चूक जाते हैं, क्योंकि आप यू आर बिजी रीडिंग द सॉन्ग, रीडिंग एंड सिंगिंग, तो फिर उसमें फील कम आती है गाने में। और किसी भी गाने को तैयार करने का एक सबसे अच्छा तरीका है कि आप उस गाने को इतना सुने और इतनी बार सुने कि आपको बस वो याद हो जाए, सुने और ऑफ कोर्स गाएं भी, तो वो आपको याद हो जाए। और अगर गाने से पहले ही याद हो जाता है गाना तो और भी अच्छी बात है। तो आपको सिर्फ अपने होमवर्क पे फोकस करना है, जो हमने 6 स्टेप्स देखे हैं उन पे फोकस करना है। गाना आपका ऑलरेडी रेडी है, लाइक लिरिक्स वाइज इट इज़ रेडी। और फिर जब आप गाएंगे विथ फील, फिर वो आएगा, दिखेगा। नहीं तो अगर तभी भी मेमोराइज्ड नहीं है, आप देख के गा रहे हैं, तो दैट इज गोइंग टू टेक अवे सम ऑफ योर अटेंशन। तो और उसमें फिर वो ऑडियंस भी डिस्ट्रैक्ट हो जाती है कि यू आर नॉट इंटरेक्टिंग विद द ऑडियंस, यू नीड टू ऑल्सो पे अटेंशन टू हाउ यू आर एंगेजिंग द ऑडियंस। अब कोई भी गज़ल ले लेंगे, नज़म ले लेंगे, उसमें एक पेश करने का अंदाज होता है, उस पे लोग दे लुक फॉरवर्ड टू दैट। एक ही talking to them. हाँ राइट, जैसे आज जाने की जिद ना करो, एक बहुत ही पॉपुलर, आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर नज़म्स, और ये कितने आर्टिस्ट ने गाए हैं, इसको इन्होंने गाया है, लेकिन आपको शायद एक या दो आर्टिस्ट ही ऐसे होंगे जिनका आप सुनना चाहेंगे, बार बार सुनना चाहेंगे। क्योंकि उनके अंदाज, उनका जो बयां करने का अंदाज है वो बिल्कुल मतलब एकदम एप्ट है, कह सकते हैं कि वो दे आर इंटरेक्टिंग विथ यू, और द वे दे आर प्रेजेंटिंग, यू आर डायरेक्टली इनहेरिटिंग द फील ऑफ द सॉन्ग। तो दैट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। तो हम देख सकते हैं। थोड़ा सा ये सब्जेक्टिव भी होता है। करेक्ट। 50 लोग बैठे हैं, उसमें से 10 लोग उसको इनहेरिट करेंगे, हाँ बाकी 40 वो किस मूड में आए, क्या करके आए, हाँ, वो तो शायद सबको ना लगे, लेकिन 10 को तो जरूर लगेगा। हाँ, मतलब यू कैन नॉट प्लीज ऑल ईच एंड एवरी पर्सन सिटिंग इन द ऑडियंस, बट आई वुड से अगर मेरा खुद का जो एक्सपीरियंस रहा है, और मैं जिसको सबसे ज़्यादा अहमियत देती हूँ, अगर शो के बाद कोई आता है बैक स्टेज या मुझसे मिलने और फिर आके बोलता है कि आपने आज जो गाया अच्छा गाया या बहुत अच्छा गाया, इसमें मैं नहीं जाना चाहती हूँ, लेकिन मैं इतना कहना चाहती हूँ कि दिस वाज वन ऑफ माय बेस्ट एक्सपीरियंसेस लिसनिंग टू दिस सॉन्ग, एंड दिस वाज सो सोल टचिंग, और दिस वाज सो हीलिंग। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, और ये मेरे लिए सबसे उम्दा कॉम्प्लीमेंट है कि पहुँची, मैं जो एक्सप्रेस करना चाहती थी वो बात पहुँची किसी के दिल तक। तो सिर्फ गाने को गाना is only the first step of the probably 10 more, और फिर जाके आप जब उसको जीने लगते हैं किसी गाने को, तब जाके वो बात आती है कि आप आगे वाले तक पहुंचा सकते हैं उस फील को। तो बहुत जैसे आपने कहा कि बहुत सब्जेक्टिव टॉपिक है, कौन किस मूड से आएंगे वो भी है, लेकिन आप पहले अपने आप को प्लीज कीजिए, अपने आप को। एक बात है, दूसरा जो उनका जो कंडीशनिंग रहा है, उनकी जो संस्कार जो बोलते हैं, हाँ वो जैसे मेरे यहाँ काफ़ी जैसे यूरोप से लोग हैं, इंडिया से लोग हैं, तो एक बार बहुत पहले की बात है, ये बात हो रही थी कि ये सुबह का राग होता है, सुबह के राग में ये फील आता है कि भैरव है तो शिव और वगैरह वगैरह। तो कुछ लोगों ने बोला कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो हमने तो ये सब सुना ही नहीं है, तो हमको थोड़ी फील होगा वो। उन्होंने वो रॉक पॉप यही सब सुना है,
तो उनके लिए ये भैरव का, जैसे आप भैरव गा रहे हो तो एकदम से जिसने भैरव बचपन से सुना हुआ है या इंडिया का जो कंडीशनिंग जिसको हुआ है वो तो एकदम पकड़ लेगा। करेक्ट। हाँ, भैरवी आई तो एकदम से एकदम मतलब एक डिवाइन प्रेजेंस हो गया, वो सब होता है। राइट राइट। सबके लिए करना मुश्किल है। हाँ, या दैट इज ट्रू। बट वही मैंने कहा कि मान लीजिए 100 के ऑडियंस में अगर 2-3 लोग भी आए मेरे पास, तो देन आई कंसिडर माई सेल्फ यू नो सक्सेसफुल इन दैट कॉन्सर्ट, कि मैं आई डोंट pay attention to the remaining, you know, 95-96 people. अच्छा तो बोलते हैं लोग, कुछ लोग फीडबैक भी देते हैं और वो बिल्कुल सर आँखों पर, एंड आई एम इम्प्रूविंग इन एवरी कॉन्सर्ट ऑफ माइन। बट वो एक ऐसा कॉम्प्लीमेंट है, अगर किसी ने ये कह दिया तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। एंड दैट आई थिंक शुड ऑल्सो बी लाइक वन ऑफ द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स, कि अगर आप जो एक्सप्रेस करना चाहते हैं वो अगर बिल्कुल कम्युनिकेट कर गया वो बात, तो बिल्कुल आप लाइक यू हैड अ सक्सेसफुल कॉन्सर्ट। मेरा एक होता था, मैं एक मेरे पास कुमार जी के कैसेट्स थे और गिरजा देवी जी के, तो उसमें कुछ थे जो मतलब मैं ड्राइविंग में लगा देता था, तो मतलब 1-2 पॉइंट पे ऐसा आता था कि आई फुल scary eyes and I can't see anything in traffic anymore. तो मैंने फिर बंद करके रख दिया। रिस्की हो जाते हैं फिर। सारी सुन सकते हैं उसको। राइट राइट। कि ऐसा छू जाती थी, किसी दिन ऐसा होता था, आप मतलब उस भाव में हो। हाँ, वो किसी दिन, जैसे आपने कहा कि अगेन द सेम थिंग, किसी दिन की बात ही है कि यू नो यू आर जस्ट लाइक rightly ripe to take that emotion. एक वो परवीन जी का भवानी दयानी मैं बोलने वाली थी। हाँ, और एक राजन साजन जी का जो एक है वो राग दुर्गा में। अच्छा। वो दोनों इतना मतलब मुझे टच करते थे, बाप रे बाप। हाँ बिल्कुल, मतलब भवानी दयानी तो या that is I would say like the epitome of divinity. अगर आपको डूबना है तो बिल्कुल go for that. Okay, so coming back to the आज जाने की जिद ना करो। आज जाने की जिद ना करो, आज जाने की जिद ना करो, यूं ही पहलू में बैठे रहो, यूं ही पहलू में बैठे रहो, आज जाने की जिद ना करो। तो ये हुआ, I would say this is one of the good presentations. अब इसको आप और भी फील के साथ गा सकते हैं, जैसे जैसे मूड बनता जाएगा। जैसे मैं बोलती हूँ कि शायद गाने की पहली लाइन पे ही वो फील आपको ना आए, लेकिन जैसे जैसे आप अंदर जाते जाएंगे और फिर वापस वो पहली लाइन आएगी, फिर आपको और भी you know you will feel that line a little differently, little more. तो वो है। और दूसरा और एक तरीका, जैसे इसी गाने को आप सेम टेक्निकली सेम गा सकते हैं। आज जाने की जिद ना करो, यूं ही पहलू में बैठे रहो, आज जाने
हिसाब से पता नहीं आपको कौन सा वर्जन बेटर लगा, आप बताइए। ये वाला जैसे हो गया कि मुशायरा में थोड़ा पढ़ लिए, थोड़ा सा गाना टाइप पढ़ हाँ बिल्कुल लिए, बिल्कुल। तो सुर ताल राइट। में था, लेकिन आप कहीं थे और नज़म कहीं और थी, ऐसा हो गया। बिल्कुल सही। हाँ तो मैं कोशिश कर रही थी कि वो आए, वही निकल के आए। तो जैसे आपने कहा कि बिल्कुल गाना तो सही था, सुर ताल सही थे, लेकिन वो फील तभी आएगी जब आप फील करेंगे, और मैंने वो फील नहीं की। और एक चीज़ जो मैंने सेकंड वर्जन में नहीं किया वो है, मैंने अपने अंदर के जो वाइब्रेशनल एस्पेक्ट है उसको ध्यान में नहीं रखा। पहला जो, फीडबैक। हाँ राइट, सो पहला जो मैंने गाया उसमें बिल्कुल मैंने डीप वॉइस या बेस वॉइस जो भी है मेरा, उसको मैंने और निखारने की कोशिश की, क्योंकि जो भी गज़ल या जो भी नज़म की जो पेशकश होती है वो बिल्कुल वो आवाज़ में वो भारीपन होना चाहिए, आवाज़ में वो एस्पेक्ट होना चाहिए कि आपकी आवाज़ पहुँचे दूसरे के दिल तक। तो बेस वॉइस इज़ वेरी एसेंशियल फॉर गज़ल गायकी, और वो मैंने यूटिलाइज करने की कोशिश की, मेरे हिसाब से मैंने कोशिश की। और हाँ शायद थोड़ा बहुत उससे फ़ायदा होता है कि आप उसको फील करते हैं और अच्छे से एक एक वर्ड को। और अनदर वन मोर एस्पेक्ट ऑफ मेकिंग इट मोर अपीलिंग इज़, आप जो लाइन गा रहे हैं उसमें लिरिकल मीनिंग को भी ध्यान में रखिए। अब जैसे सेम गाना, आज जाने की जिद ना करो, तो इससे क्या हुआ, ये मैंने अब इसमें सुर ताल सही थे, बेस वॉइस और गूंज वगैरह वो सारा चीज़ मैंने एक्सपीरियंस किया और मुझे अच्छा लगा। लेकिन मैंने एक चीज़ की तरफ ध्यान नहीं दिया, वो है जो आज जाने की, आज जाने, फिर उसके बाद मैंने गैप दे दिया कि जिद ना करो, तो क्या उसका मीनिंग थोड़ा चेंज हो जाता है। थोड़ा सा तो आज जाने की जिद ना करो, एक आप कंटिन्यूअस गाएंगे तो उसका मीनिंग कुछ और आएगा, या फिर आपकी सांस अगर पूरी नहीं आ रही है तो एक सेंसिबल जगह पे जाके आप कट कर सकते हैं और फिर दूसरा सेक्शन दूसरी सांस पे ले सकते हैं, एंड दैट इज़ अनदर एस्पेक्ट। जैसे आज जाने की जिद ना करो, तो उसमें जब मैंने ये गाया तो मेरे ख्याल से वो ज़्यादा अच्छे से कन्वे करेगा कि मैं सच में बोल रही हूँ कि आप जाने की जिद ना कीजिए, वर्सेस आप जाने की जिद ना करो, या फिर आप जाने की जिद ना करो, यू नो। तो पंक्चुएशंस आर इम्पॉर्टेंट इन सिंगिंग, एंड ये बहुत एसेंशियल होता है लाइट गानों में, लाइट या सेमी क्लासिकल भाव एक्सप्रेस करने के लिए, या मोर ऑफ द सेमी क्लासिकल जॉनर आई वुड से, लेस इन द क्लासिकल जॉनर। So that is another way to, ये बढ़िया पॉइंट था कि बाकी सब ठीक हुआ है फिर भी क्यों मजा नहीं आ रहा है, तो इस चीज पे ध्यान दो फिर कि हाँ हाँ मीनिंग तो बदल नहीं गया आपके पंक्चुएशन से। एग्जैक्टली exactly. और इसमें भी आप कितना आप इंटरैक्ट कर रहे हैं ऑडियंस को, वही चीज़ आप उनकी तरफ देख के समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये मैं आपसे बोल रही हूँ, तो वो एक मैटर करता है, वर्सेस आप नज़रें नीची करके गा रहे हैं या आंखें बंद करके गा रहे हैं। ठीक है, भाव विभोर होके आंखें बंद करके गाना, एक आध मोमेंट ऐसा आता है जब आप खो जाते हैं अपने में ही, लेकिन उसके बाद भी जब आप वापस आते हैं, it is your utmost responsibility to interact with the audience and express what you want to express and make sure they are getting it, make sure you are conveying what you want to express. बढ़िया। अच्छा, तो मैं थोड़ा सा एक रिकैप कर देता हूँ फटाफट। आई थिंक आई हैव टेकन
a lot of your time today or tonight. That was good actually. नहीं, एक तो होता है कि आर्टिस्ट अपनी तरफ से सारा कुछ दे दे, है ना, और दूसरा ये होता है कि एक सामने से वार्तालाप हो, तो उसमें फिर अलग मजा आता है। तो मुझे बिल्कुल। लगा कि अच्छा रहेगा कि मैं सवाल जवाब करूं फिर। नहीं, this was a great. लेवल नहीं आया कि किसी को सवाल करूं लेकिन बातचीत तो कर ही सकता हूँ। नहीं बिल्कुल नहीं आप यू आर वेरी नॉलेजेबल और एक ऐसा सेशन होना भी चाहिए जिसमें कि हम एक डिस्कस कर रहे हैं एक पर्टिकुलर टॉपिक पे एंड देन आई एम श्योर देयर विल बी लॉट ऑफ वैल्यू एडिशन दोनों तरफ से तो या वी शुड डू वन। ये मैं रिकैप थोड़ा सा करता हूँ कि कुछ हमने क्या क्या कवर कर लिया। तो मोस्टली वी टॉक्ड अबाउट वॉइस कल्चर रिलेटेड स्टफ, आवाज़ को कैसे खोलें, आवाज़ को कैसे साधें, आवाज़ को सुबह क्या करना है, शाम को क्या करना है, रियाज के रूटीन, खुलापन आवाज़ का, और उसी में से रिलेटेड थोड़ा खर्च में क्या फ़ायदे होते हैं, नेज़ल क्यों नहीं करना चाहिए वगैरह वगैरह। और उसके बाद यू ऑल्सो शोड अस ए रोड मैप कि भाई कोई एक गाना ले रहे हैं तो उसको मैपिंग कैसे किया जाए और उससे फिर धीरे धीरे परफेक्शन कैसे लाया जाए। उसमें एक सवाल और दिख रहा है कि आवाज़ में गोलाई कैसे लाएं, और एक थोड़ा सा ऑफ टॉपिक सवाल है, नोट्स को विजुलाइज कैसे करें। हाँ, ये दो यही दो बचे हैं क्या? हाँ, फिर दूसरा टॉपिक जो है वो ब्रीदिंग रिलेटेड है, मेरे ख्याल से उसको हम अलग दूसरे दिन कभी कवर करेंगे। ओके, तो आवाज़ में गोलाई कैसे लाएं, ये तो गमक मेनली इज मोर इम्पॉर्टेंट। तो गमक एक्चुअली मेरा एक वीडियो ट्यूटोरियल है उस पर गमक, बट इन शॉर्ट व्हाट आई कैन से इज गमक, लोग गोलाई का जब सोचते हैं तो उनको लगता है कि बस आगे पीछे कर लेंगे, एक जगह पे कुछ नोटेशन है तो उसको मतलब रफ एस्टिमेट कर लेते हैं और फिर आवाज़ को एक झटके से प्रोड्यूस करना, गमक, ये सारी चीज़ें करते हैं। लेकिन उनको एग्जैक्टली पता नहीं है कि गमक का मतलब है, और गोलाई तभी आती है जब आप समझेंगे इसके पीछे का जो राज है कि गोलाई कैसे आ रही है। बिकॉज गमक इज़ नथिंग बट बैक एंड फोर्थ बिटवीन टू नोट्स। तो अगर आपका जैसे आपका सा, तो सा पे गमक नीसा नीसा भी हो सकता है, रेसा रेसा भी हो सकता है। तो मतलब 1 2 1 2 या 2 1 2 1 दोनों तरफ से। तो जब मैं सिंगल स्वर का मैं बताती हूँ, तो एक ही पॉइंट पे आई एम एक्चुअली टचिंग निसा 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 निसा, ये कर रही हूँ मैं। और अगर मुझे रेसा रेसा करना है, तो रेसा रेसा हो गया। तो ये होता है इन शॉर्ट गमक, और इसको हमें हर सरगम में या हर जो भी आप गा रहे हैं, जो भी सरगम आप गा रहे हैं, उसमें हमें यूज़ करना है। सबसे पहले तो एक तरीका है कि रिपीटेड नोट्स का रियाज किया जाए। जैसे तो मैं एक्चुअली सा सा रे रे गा गा मामा गा तो रही हूँ, लेकिन मैं निसा निसा सा सा निसा निसा गाया, सारे सारे रे रे रेगा गा मामा तो ये मैंने शॉर्ट में गाया। और बिल्कुल बारीकी से आपको देखना है कि कितना टच ऑफ नी इज रिक्वायर्ड फॉर सा गमक। तो वो एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, वो देखना है। और वो अगेन ये रियाज से ही आएगा। आप जितना भी आप सुनेंगे किसी को या आप अपने गुरुजी से सीखेंगे,
फिर भी आपको खुद करने के बाद ही पता चलेगा कि कितना प्रोपोर्शन होना चाहिए। और आप जितना प्रैक्टिस करेंगे आपको अपने आप से वो दिखने लगेगा कि इसे कहते हैं गमक। और थोड़ा गमक को और स्लो कर देंगे तो आपका आंदोलन आता है। और थोड़ा प्रोपोर्शन भी आप थोड़ा आगे पीछे कर लेंगे, नीसा नीसा वाला या सारे सारे रेसा रेसा वाला, तो वो हो जाता है फिर आंदोलन। तो बिल्कुल आपको ऑसिलेशन दिखने लगेगा कि दोनों नोट्स में इक्वल ऑसिलेशन हो रहा है, तब जाके वो आंदोलन आ रहा है। तो ये दोनों चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट है आवाज़ में गोलाई लाने के लिए। जितना आप रिपीटेड नोट्स का रियाज करेंगे तो आपकी आवाज़ में गमक पैदा होगा, और आपको इक्वली आंदोलन भी आने चाहिए आपकी आवाज़ में, क्योंकि कुछ कुछ गानों में आंदोलन ही चाहिए होता है। कुछ कुछ गानों के कुछ कुछ जगह पे आप अगर उन जगहों पे गमक डाल देंगे तो फिर वो मज़ा चला जाएगा। अगर कोई गाना है जैसे सॉफ्ट कुछ एक्सप्रेस किया जा रहा है, कुछ रोमांटिक सा एक्सप्रेस किया जा रहा है, उसमें आप गमक डाल देंगे तो मतलब इट विल बी टू स्पाइसी फूड, फिर वो मज़ा नहीं आएगा उस खाने का, तो उस गाने का भी। तो वैसे ही दोनों चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट है आवाज़ में, दानेदार गमक या गोलाई जो भी है, राउंडेडनेस वो लाने के लिए। और नेक्स्ट था नोट्स को विजुलाइज कैसे करें। हाँ, ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, और मैं अपना एक्सपीरियंस जो मेरा रहा है नोट्स को विजुलाइज करने का, तो वो बिल्कुल वो ऐसे तैयार हो गया है क्योंकि मैं बचपन से हारमोनियम पे मैंने सीखा है। तो जब मैं बचपन में मैं सीखती थी गाना, तो मेरे घर पे मेरे गुरुजी आते थे कलकत्ता में, तो हर एक हाउस होल्ड में एक हारमोनियम होता ही है कलकत्ता में। इट्स लाइक लाइक मैंडेटरी फर्नीचर सॉर्ट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, तो वो होना ही चाहिए हारमोनियम, तबला। तो हारमोनियम होता ही है, और फिर जब गुरुजी आते हैं तो वो हारमोनियम पे पहले सिखाते हैं और फिर हारमोनियम टर्न करके बोलते हैं गाओ। तो हारमोनियम पे बजा के ही छोटा जो बच्चा है बच्ची है वो गाती है वैसे। तो वैसे ही मेरी शुरुआत जैसे हुई, तो मेरी बड़ी मौसी जो कलकत्ता में बहुत ही जिनका नाम है श्रीमती शीला दास, तो उनसे मेरी तालीम शुरू हुई। तो वो तो मेरी मौसी हैं, कभी भी आती थी और कभी भी हम लोग गाना सीखते थे और ऐसे ही कुछ गा लेते थे, तो ऐसे ही होता था। तो हारमोनियम पे ही मैंने सबसे पहले गाने की शुरुआत की, तो मुझे हारमोनियम के नोट्स दिखते हैं जब मैं कोई सरगम गाती हूँ। सही बात। हाँ, तो ये मेरा एक्सपीरियंस रहा है। अब वो भी और एक इसमें भी प्लस और माइनस दोनों है कि मुझे हारमोनियम के नोट्स दिखते हैं, प्लस पॉइंट है, लेकिन माइनस पॉइंट ये भी है कि मुझे जी शार्प के ही नोट्स दिखते हैं। तो क्योंकि मेरा स्केल रहा है जी शार्प, जी शार्प, एक्चुअली जी शार्प। तो वो भी है कि अगर नाउ व्हेन आई एम ट्राइंग टू प्ले डिफरेंट पिच, तो मुझे स्केल चेंज हारमोनियम की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि मुझे जी शार्प पे ही बजाना ईजी लगता है। Now coming to other ways of visualizing notes, ये तो रहा मेरा किस्सा। लेकिन कोई भी जब मुझसे पूछता है कि how to visualize the notes, तो मैं उनको ये बोलती हूँ कि आप लिख लीजिए एक प्लेन पेपर पे सारे गामा पधा निसा लिख लीजिए। यू कैन यूज कलर कोडेड पेन्स, या आप सातों स्वरों को कलर कोड कर दीजिए और एकदम विविड कलर्स, और उसी को देख देख के आप गाइए। आप जब सा गा रहे हैं तो सा को मान लीजिए आपने रे पेन से लिखा है, रे स्केच पेन से लिखा है, एंड मेक श्योर दे आर प्रिटी बोल्ड एंड प्रोमिनेंट इनफ, ताकि आपको याद रहे। आपके दिमाग को हम अगेन इट्स यू हु आर ट्रेनिंग योर ओन ब्रेन। सो आपको अपना ही विजुअलाइजेशन पक्का होना चाहिए, आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो आप सारे गामा पधा नी सातों रंगों में लिख सकते हैं, सातों कलर के स्केच पेन से, एंड जस्ट मेक इट लाइक फ्रेम इट और पुट इट अप ऑन द वॉल। मेक श्योर
you go over it every time you're singing a sargam. सारेगामापाधानीसा तो है ही, लेकिन कोई भी अलंकार गा रहे हैं, कोई भी सरगम गा रहे हैं, तो उन्हीं में से आप देखने की कोशिश कीजिए कि अच्छा रेगा मा मतलब ब्लू ग्रीन रेड, या गामापा मतलब ग्रीन रेड ब्राउन, जो भी आप लिखेंगे. तो दिस इज अनदर वे ऑफ विजुअलाइजिंग नोट्स. जैसे कोई भी पलटा है, उसको आप नया पलटा है, आपको पैटर्न पता चल गया, नाउ यू आर सिंगिंग इट ऑन द फ्लाई. आपको लिखना नहीं है, आप बस ऑन द फ्लाई आप गा रहे हैं. तो आप कैसे करेंगे? तो दैट इज वेयर यू शुड कीप योर आईज ऑन. लुक एट द कलर कोडेड सारेगामा on the wall या on the paper and then make it on the fly. तो ये एक तरीका है, again making your brain optimum for music, like making it more active to quickly making it agile to make the patterns, make the sequence on the fly. तो ये एक तरीका है विजुअलाइज करने का. दूसरा तरीका तो बस आप खुली आंखों से विजुअलाइज करें. जो नॉर्मली जब हम कोई भी विजुअलाइजेशन टेक्निक करते हैं एक्टिविटी, तो खुली आंखों से करें. आप ऐसे आपको बस मानना है कि सामने है सारेगामापाधानीसा. तो आप लेकिन वो थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है. लाइक इट्स अ कॉन्सेप्ट ऑफ साकार और निराकार. तो एक में बिल्कुल फॉर्म है, आप देख के कर सकते हैं, एंड जो निराकार फॉर्म है वो इट्स नॉट विजिबल. तो इट माइट बी अ लिटिल चैलेंजिंग इनिशियली, लेकिन बस एक आदत बननी चाहिए. और ह्यूमन बॉडी इज इज स्लेव ऑफ हैबिट. तो आप जो भी आदत डालेंगे तो वो आप के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगा. एंड मेक श्योर टू स्टिक टू इट. ऐसे नहीं कि 10 दिन किया आपने, फिर आप बोर हो गए, कुछ और करने लगे, देन द हैबिट इज़ नॉट मेड. तो ये एक दो तरीके हैं विजुअलाइज करने के, अदर देन हारमोनियम नोट्स. मैं वो दिखाता हूँ, वो जो हमने जो प्रोजेक्ट किया था विजुअलाइजेशन का. हाँ,